Hello, everyone. A very warm welcome to each and everyone present and watching. This is Raghav Arora, the editor for Lawyers Club India, and today we are back with another video on the series CRPC Landmark Judgments. And today we are going to do two judgments. We are going to cover the decision in two judgments, which is Joginder Kumar versus State of UP 1994 and DK Basu versus State of West Bengal 1997, as you can see on your screen. And talking about screen, we've introduced a new way of delivering the lecture on popular demand. Actually, the demand was not very popular, but one or two very good friends of mine suggested that it's better that you do it with PPT, that people find it better. So you tell me in comments if you find this format better, and we'll go ahead with that. So the judgment that we are doing today, these judgments are more about jurisprudence and about literature and the rationale behind what the courts have said in these judgments rather than something that can be practically applied जो हमने पिछली दो जजमेंट में किया लक्ष्मी ब्राह्मण में एंड दूसरी जजमेंट में बट इस जजमेंट में it's more for those who love to you know find good observations in judgments, good quotations and good quotes borrowed from other courts from US and Arizona, आयरलैंड कनाडा अदर कोर्ट्स इन कोर्ट्स की बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस इन जजमेंट्स के अंदर है जो लोग जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दोज हु लाइक रीडिंग लिटरेचर उनके लिए अच्छी हैं काम की. So starting off, these judgments are about arrest, illegal detention, custodial injury, death, and victim compensation. So it's all about how police or the executive has been conducting its business in India and how has it improved or not improved and how it can be improved further. And because of that, what changes have been introduced to CRPC and more specifically to Section 41. Now we have sections provisions related to arrest from straight from 41 to 60A, but 41 में बहुत सारे changes किए गए हैं and now 41 has grown from being a little section, timid section of 2 pages or so on the slide. It has grown to seven screenshots in which I have put the section in the PPT here. So other than 41, we have also seen changes in sections like 50A, 53A and 60A. So बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हैं एंड उनके पीछे क्या रैशनल रहा, कैसे वो चेंजेस आए, वो सब हमें जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 एंड डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में पता चलेगा. इसके अलावा हम बहुत सारे सेक्शंस आईपीसी के, सीआरपीसी के एंड एविडेंस के भी देखेंगे एंड कई सारी जजमेंट्स भी देखेंगे दूसरी जिनको जो या तो इन जजमेंट्स पे बेस्ड है या फिर ये जजमेंट्स उन पे बेस्ड हैं एंड किस तरीके से उनकी हेल्प लेते हुए इन जजमेंट्स ने इंट्रोड्यूस करी अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सीआरपीसी एंड द सेक्शंस रिलेटेड टू अरेस्ट. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल फर्स्ट नो अरेस्ट आया कहां से, व्हाट इज द ओरिजिनेशन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड अरेस्ट. अरेस्ट एंग्लो फ्रेंच वर्ड है जिसमें दो वर्ड्स को मिला के इसको बनाया गया है, विच वाज एड रेस्टेयर. एड रेस्टेयर का मतलब था टू रेस्ट समवेयर, टू रिमेन और टू स्टॉप. वहीं से अरेस्ट बना दिया गया, बोलते बोलते एड रेस्टेयर बिकेम अरेस्ट. एंड एज फार एज द origination of the practice of arrest goes, we are not sure where it came from because जब से हम लोग हैं तब से ही arrest and detentions हो रहे हैं. We have found it in the mythological books also. रामायण में रावण making the illegal detention and हरण of Sita, and Bhishma Pitama illegally detaining or wrongfully detaining Shakuni and his brothers and father. And then there was your Mama Kans illegally detaining the mother of Krishna. So all these were they can be said to be the origin or sort of the instances that we can find about arrest. So it's been there since we have been there. Now जैसे जैसे हम आगे आए, जैसे जैसे रिकॉर्ड होना शुरू हुआ टाइम, मुगल एरा में आके कहीं कहीं पे कुछ कुछ इंस्टेंसेस दिखे जहां पे कुछ ज्यूरिस्प्रूडेंस बननी शुरू हुई इस बारे में कि इलीगल डिटेंशन क्या है और राइटफुल डिटेंशन क्या है, राइटफुल एंड सैंक्शनड एंड लॉफुल कन्फाइनमेंट क्या है. That did not happen because the Mughal emperors were very sensitive towards people being arrested or their rights being infringed.
but because by that time there were many people who had started learning and writing and expressing their views, और उस वजह से लोगों की आवाजें सुनी जाने लगी कम्युनिटी में। देयर वाज नो अदर मीडियम, हमारी तरह कोई मीडियम नहीं था कि आज कोई बात हुई तो उसका मीम बनाया, ट्वीट ट्वीट कर दिया, उसको इंस्टाग्राम पे डाला एंड कहाँ का कहाँ पहुंच गया, रील बना दी तो कहीं भी पहुंच सकता है वो। तो उस टाइम पे द बेस्ट यू कुड डू वाज टू टेल the people around you in the community, get up on a stage and address people and all that. So उस टाइम पे वो होने लगा because some people who began to raise their voice against the Mughal rule as well as the British rule, इन लोगों की बातें सामने आने लगी, and from there we could see some judgments of the very earlier period of the British jury and the British judges, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ बातें की गई हैं इलीगल डिटेंशन एंड इलीगल अरेस्ट की। ऑल्दो बहुत ज्यादा संख्या में ऐसा नहीं है इंडियंस के खिलाफ, इट हैज ऑलवेज बीन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, इंडियंस के खिलाफ हमेशा गलत तरीके से प्रोसीडिंग चली है ज्यादातर केसेस में। उसी तरीके से एग्जाम्पल भी है, जैसे मिस्टर बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका जो ट्रायल हुआ था, 3 बार उनका ट्रायल हुआ, 1898 में, 1908 में, 1916 में। उनको 2 बार सजा हुई, 3 बार एक्चुअली सजा हुई। एक बार सजा हुई 12 महीने की, एक बार 6 साल की, और एक बार 20-20 हजार के, दो उनको बॉन्ड भरने पड़े, मगर सजा नहीं हुई बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम, द थर्ड ट्रायल दैट हैपेंड, उसमें पहली बार उनको एक एडवोकेट मिला विच वाज मोहम्मद अली जिन्ना, एंड ही कुड फाइट हिज केस सक्सेसफुली, एंड उनको बॉन्ड्स भरवा के छोड़ दिया गया, बट बॉन्ड्स वर हैवी, 20,000 के। बट इन द अदर टू ट्रायल्स, जो दो बाकी के ट्रायल्स हुए, उसमें ही वाज his rights were flouted, each and every right that now today we see you have to be arrested only if it is a cognizable offense, and you have to be given an appearance of notice, and you have to be taken to the magistrate in 24 hours. Nothing happened there. He was detained for 6 days for making a speech, writing a piece in Kesari. Then he was not let to meet his lawyer or to get a professional. Then he was straight away taken to the jury and to the judge, and वहां पे 7-2 के रेशो से उनको सजा दे दी गई 6 साल। दैट इज हाउ इट हैपेंड, एंड ही डिड हिज ओन आर्ग्यूमेंट्स, बहुत 20-22 घंटे की उन्होंने आर्ग्यूमेंट करी, मगर उसके बाद ही कुड नॉट विन, एंड ऑब्वियसली ही कुड नॉट बिकॉज देयर वाज इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश जजेस, एंड द jury had to do what they were instructed to do. So जो पहली बार हमारे यहाँ पे कोड आया, क्रिमिनल कोड, वो आया ब्रिटिशर्स के थ्रू। 1771 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने रेगुलेटिंग एक्ट दिया हमें, जहां जिसमें सुप्रीम कोर्ट बनाया गया फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ द क्राउन ओनली। 3 सुप्रीम कोर्ट्स बनाए गए, मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता, एंड वहां से सिर्फ सब्जेक्ट जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे उन्हीं के ऊपर उनकी जुरिस्डिक्शन थी, उन्हीं के बारे में वो बात करते थे। आफ्टरवर्ड, बिकॉज यहाँ पे ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस अभी तक डायरेक्ट नहीं हुई थी, ब्रिटिशर्स ने कोई अपना लॉ इंट्रोड्यूस नहीं किया था। आफ्टर 1857 की रिबेलियन, इन विच द कंपनी सॉ a very huge backlash all over the country, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि इनके हाथ से सत्ता छूट रही है, इनका इन्फ्लुएंस खराब हो रहा है, तो नाउ वी हैव टू गेट इनटू द गेम एंड वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड द प्रॉफिट्स दैट वी आर डिराइविंग फ्रॉम इंडिया। And in 1860, British Crown removed East India Company from the picture, and they took direct control of the affairs happening in India. इसी दौरान 1860 में IPC आया। IPC is not the criminal code that I'm talking about here, but 1860 में मैकॉले ने अपना IPC पूरा कर लिया था। 1860 में उनकी डेथ हो गई थी। 1862 में जाके IPC लागू हुआ था, बट 1861 में पहली बार क्रिमिनल कोड आया था इंडिया, एंड उसकी पहली अमेंडमेंट 1898 में हुई थी। द ओल्ड लॉयर्स, द एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स नो द 1898 सीआरपीसी, एंड द यंग लॉयर्स वी नो इट एज 1973, जो हमारे लिए अभी सीआरपीसी है, जो हम पढ़ते हैं। तो 1898 में पहली बार अमेंडमेंट हुई, एंड 41st अमेंडमेंट के बाद हमारा 1973 का सीआरपीसी बना, जो हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद 2005 में और 2010 में अमेंडमेंट आई, जो जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नाउ
उस टाइम पे क्रिमिनल कोड जरूर हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, हाउएवर द एग्जीक्यूट ऑलवेज हेल्ड द पावर एंड डोमिनेटेड एंड ऑपरेस्ड अंटिल द रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट में बहुत सारी जजमेंट्स आई जिसमें जुडिशरी हैज actually taken on the reins of the fundamental rights and justice, and they've done a very decent job. उसी टाइम पे जब ये जजमेंट लिखी जा रही थी जोगिंदर कुमार की, एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम लुइस मेयर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द जजमेंट which talked about striking a balance between protection and oppression. किसकी protection, किसका oppression? Now, when someone is arrested, he is arrested and his rights may or may not have been infringed. तो एक सिचुएशन हो सकती है कि किसी के ऊपर गलत तरह का एलिगेशन लगाया गया एंड ही इज अरेस्टेड। पुलिस ऑफिसर्स ऑन द फेस ऑफ इट मे और मे नॉट नो कि इसकी गलती है या नहीं, मगर अगर इसकी गलती नहीं है तो इसके राइट्स इन्फ्रिंज हो गए। मगर अगर इसकी गलती है और सही तरीके से इसको पकड़ा गया है तो इसके राइट्स नहीं इन्फ्रिंज हुए। सोसाइटी को हमने प्रोटेक्ट किया, जो स्टेट की जिम्मेदारी और स्टेट का प्रॉमिस है सोसाइटी के साथ। और अगर इसके ऊपर एलिगेशन जो थी वो गलत साबित हो जाती है आगे जाके और कोई केस नहीं बनता, या फिर अभी भी पुलिस को पता है कि कोई केस नहीं बनता और गलत तरीके से घूस खा के इसको अरेस्ट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है, तो इसके राइट्स इन्फ्रिंज हो जाते हैं। मगर अगर किसी को हम ना पकड़े, घूस खा के ही ना पकड़े या किसी और वजह से ना पकड़े, तो दैट पर्सन इज आउट एट लार्ज एंड ही इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी अगेन, तो सोसाइटी के राइट्स इन्फ्रिंज हो जाते हैं। तो देयर इज अ ट्रायंगल जिसके अंदर सारा क्रिमिनल सिस्टम फंस गया है। एंड वहां पे वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड ऑपरेशन, विच हैज बीन अ पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट क्राफ्ट। हमेशा से चलती आई प्रॉब्लम है ये स्टेट क्राफ्ट की, पॉलिसी मेकिंग की एंड एग्जीक्यूशन की, एंड लेटली इट हैज स्वंग टू द राइट। ये बात जो हो रही है वो 1994 में हो रही है, जब ये ऑब्जर्वेशन को कोट किया गया इस जजमेंट में, एंड दे हैव ऑब्जर्व कि अभी इट हैज स्वंग टू द राइट, माने एग्जीक्यूटिव की ऑपरेशन जो हो रहा है वो उस टाइम पे ज्यादा हो रहा है। इंदिरा गांधी का पीरियड अभी अभी निकला था, बहुत सारे चेंजेस हुए थे। आईपीएस पुलिस वाले भगवान थे और आईएएस आईपीएस तो देवों के देव महादेव थे, तो सब कुछ होता था उस टाइम पे। नाउ इन दोनों जजमेंट में किस किस चीज की बात करेंगे, व्हाट ऑल इश्यूज हैव वी टॉक्ड अबाउट। देयर रॉन्गफुल अरेस्ट, आपको गलत तरीके से अरेस्ट किया जाता है, आपको गलत तरीके से कन्फाइन किया जाता है, आपकी फिर कुटाई करी जाती है, फिर आपकी कस्टोडियल इंजरी होती है या डेथ हो जाती है, उसके बाद ना आपके पास लॉयर से मिलने का कोई प्रॉपर आपके पास सेफ गार्ड था, ना आपके पास कॉम्पनसेशन कोई सेफ गार्ड था। ये सारी चीजें उस टाइम पे होती थी, और अब जाके हमारे पास जो बहुत सारे प्रोविजन हैं 41 में, वो हमारे पास नहीं थे। 41 उस टाइम पे सिर्फ इतनी बात कहता था, एनीवन हु इज कंसर्न्ड विद अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनीवन हु इज कंसर्न्ड, बस खत्म, नथिंग एल्स। If someone is concerned with a cognizable offense, a police officer without a warrant or order from the magistrate can arrest him. He has to take care of nothing else. He would arrest him, he would put him in confinement. The person has not talked to a relative. There was no provision कि जिसमें ये बोला जाए कि उसके relatives को या friends को inform करो। अब वो जेल में है, he is in a traumatic situation and he knows no one around, तो cellmates हैं, they will never speak against the policemen, police will never become witness against the police, they have no one they can talk to। फिर उनको मारा पीटा जाता है, मारा पीटा भी इस तरीके से जाता है कि उनके ऊपर निशान ना आए। अब तरीके हैं पुलिस वालों के, उनको कस्टोडियल इंजरी होती है या उनकी डेथ भी हो जाती है तो कॉम्पनसेशन कोई नहीं मिलती उनकी फैमिली को। तो उस टाइम तक इतने बुरे हाल थे कि देयर वाज नो सच प्रोविजन। नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ प्रोविजंस टू सीआरपीसी, और हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से सीआरपीसी चेंज हुई। नाउ कम्स द स्टोरी ऑफ जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994, which was delivered, the judgment was delivered on 25th April by Honorable Justice Venkat Chalai. 7th Jan on a chilly winter morning 1994, एक 28 साल का युवक है जिसने एलएलबी अपनी कंप्लीट कर लिया, एंड ही इज कॉल्ड बाय द एसएसपी गाजियाबाद फॉर सम इंक्वायरी दैट एसएसपी साहब हैज टू मेक। एंड एसएसपी साहब इनको बताते हैं कि आपको हम कस्टडी में रखेंगे, शाम तक छोड़ देंगे। He has done LLB, he's a smart guy, he has taken 4 or 5 friends with him, and उनको भी यही बोला जाता है कि इसको हम कस्टडी में शाम तक रखेंगे और फिर छोड़ देंगे, आप अभी जाओ।
उन सबको निकाल दिया जाता है पुलिस स्टेशन से। अब वो बाहर जाते हैं, दे वर स्मार्ट इनफ टू मेक अ टेलीग्राम टू सीएम यूपी ऑलरेडी दैट दे आर एप्रीहेंडिंग एन इम्प्लीकेशन और एन एनकाउंटर। ना उसके ऊपर या तो गलत अपराध का कुछ लगा दिया कि इसने कुछ ड्रग डीलिंग करी है या फिर कहीं और किस चीज में इन्वॉल्व था, ऐसी इम्प्लीकेशन कर दी, या फिर उसका एनकाउंटर ही कर मारा। एनकाउंटर का कई बार लोग पूछते हैं कि कौन सा सेक्शन है, तो देर इज सेक्शन 46 जिसमें प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट आपको बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जब आप किसी को अरेस्ट करेंगे यू विल एक्चुअली अप्लाई योर हैंड्स एंड फोर्स टू द पर्सन। बट सेकंड पॉइंट जो है उसमें ये कहता है कि यू विल नॉट अप्लाई मोर फोर्स देन व्हाट इज नेसेसरी। थर्ड पॉइंट कहता है इन नो केस यू विल कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन unless the person has committed the offense which is punishable by life imprisonment or death। बस जहां पे उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ वाला कोई अपराध कर रखा है, इट्स वेरी इजी फॉर पुलिसमैन टू मेक एन एनकाउंटर। दैट इज व्हाट हैपेंस इन 46। नाउ देन उन्होंने टेलीग्राम कर दिया सीएम को यूपी के, एंड उसके बाद वो शाम को वापस आते हैं एसएसपी साहब के पास और पुलिस वाले उनको बताते हैं कि जी आपके भाई को मसूरी एसएचओ के पास भेज दिया गया है एंड ही इज देयर इन हिज कस्टडी नाउ। 8 जैन को ये लोग वापस पुलिस स्टेशन आते हैं, पूछते हैं कि मसूरी में जो भी करनी थी इंक्वायरी वो पूरी हुई या नहीं हुई, और उनको बताया जाता है कि नहीं अभी भी पूरी नहीं हुई है, वहीं पे रखा जाएगा। नाउ ये लोग विचलित हो जाते हैं ऑब्वियसली, उनको मतलब दे आर नाउ दे नाउ सेंस डेंजर। तो उन्होंने अब जाके सीधा मसूरी जाने की ही ठान लिया। अब आगे वो मसूरी जाएंगे, मगर जब 7 जैन से 8 जैन हो गई, 7 जैन को 10 बजे के आसपास उनको पुलिस के पास लेके जाया गया और उनको कस्टडी में लिया गया, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि वो मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएं जिस भी बंदे को उन्होंने अरेस्ट किया है। कहाँ पे लिखा है ये? आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में एक्सप्रेसली ये लिखा गया है कि यू हैव टू टेक द पर्सन अरेस्टेड टू द मैजिस्ट्रेट, यू हैव टू प्रोड्यूस हिम देयर। उसी के साथ साथ यू विल फाइंड इट इन सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी ऑल्सो, जहाँ पे विदाउट वारंट आप किसी को अरेस्ट कर 24 आवर्स में आपको मैजिस्ट्रेट के पास उसे लेके जाना पड़ेगा। 76 में भी आपको ये दिखेगा सीआरपीसी के, दैट इफ यू अरेस्ट समवन विदाउट अ वारंट विद अ वारंट then also you will have to take the person in 24 hours to the magistrate। 150 151 पढ़ेंगे, उसमें भी आपको 24 आवर्स का प्रोविजन दिखाई देगा, दैट इफ अ पुलिस ऑफिसर थिंक्स दैट कहीं पे कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कोई डिजाइन बन रहा है कोई ऑफेंस करने का, तो उनको भी आप अरेस्ट कर सकते हैं और 24 आवर्स में उनको भी मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा। एंड सेक्शन 167 which is a very famous section, you all know about it, that if you have arrested a person and 24 hours में अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती, you take the person to the magistrate and he will tell कि कौन सी कस्टडी में कहाँ पे उसको रिमांड किया जाए। नाउ these people talk to the policeman and वो कहते हैं, मसूरी में ये लोग बात करते हैं कि क्या करें, कहाँ पे है वो, बताइए कब वो आप उनको कस्टडी से रिलीज करेंगे। वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप एसएसपी साहब से बात करिए। 9 जैन को दे गो टू मसूरी इटसेल्फ, वहां जाके पूछते हैं कि कहाँ पे है मिस्टर जोगिंदर कुमार, एंड दे कम टू नो दैट द पुलिसमैन डू नॉट टेल देम एनीथिंग एंड दे टेल दैट कि किसी अननोन लोकेशन पे उनको लेके जाया गया है, हमें नहीं पता कहाँ लेके गया। नाउ मजबूर होके इन लोगों को एक पेटिशन डालनी पड़ी सेक्शन 30 आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। एंड अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो 226 में आप किसी भी एक कोर्ट के पास जा सकते हैं। हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन वाइडर होती है, सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी नैरो होती है, इन द सेंस दैट देयर इज अ बाइफर्केशन कि हाई कोर्ट कौन कौन से मैटर्स को ओरिजिनली ले सकती है एंड सुप्रीम कोर्ट किस किस मैटर को ओरिजिनली एंटरटेन कर सकती है। पेटिशन ये दोनों कर सकते हैं, सूट्स को सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट ओरिजिनली एंटरटेन अ सूट, दैट हाई कोर्ट कैन डू। उसके प्रोविजंस आपको कहाँ देंगे? सेक्शन 26 सीआरपीसी में दिखेगा, दैट हाई कोर्ट का नाम आपको दिखेगा, दैट दीज आर दी कोर्ट्स दैट कैन टेक अप अ मैटर। 407(8) में भी आपको ये प्रोविजन दिखाई देगा और 474 474 में भी आपको ये प्रोविजन दिखाई देगा दैट हाई कोर्ट कैन ओरिजिनली एंटरटेन अ मैटर। रिट्स की बात करें तो 5 तरह की रिट्स होती हैं रिवाइज करने के लिए, कई लोग पूछ जाते हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, को वारंट। हेबियस कॉर्पस ब्रिंग द बॉडी, अगर किसी को कहीं पे रखा है गलत तरीके से उनको लेके आओ। मैंडेमस किसी को कमांड देना, यू हैव टू डू दिस। प्रोहिबिशन एंड सर्सरी, यू आस्क द जुडिशियल बॉडीज द इंफीरियर कोर्ट्स की क्या चल रहा है, मैटर हमारे पास लेके आओ, या फिर जो आप कर रहे हो वो जुरिस्डिक्शन के
एक्सेस में कर रहे हो, मत करो, रुक जाओ। को वारंट टू यू आस्क द पर्सन, आपकी अथॉरिटी क्या है, आप इस पोजीशन में बैठे कैसे हो? एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट जा सकते हो, मैंडेमस में भी आप एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट जा सकते हो, हेबिस कॉर्पस में भी आप एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट जा सकते हो। प्रोहिबिशन और सर्चरी में इट इज अगेंस्ट द इंफीरियर कोर्ट्स, जुडिशरी। Now, if you know which one is the section in CRPC about habeas corpus, then tell me in the comments. 9th जैन को मसूरी जाते हैं एंड वहां पे कुछ नहीं पता चलता, दे फाइल अ पिटिशन 32 में, जिसका संज्ञान ले लिया जाता है 11 जैन को, और नोटिस भेज दिए जाते हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड एसएसपी गाजियाबाद। 14 Jan 1994 को एसएसपी, because he is bound to come to the Supreme Court and honor the summon that the notices that Supreme Court has sent, he comes and appears with the petition. क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे उनके नोटिस का पालन, तो आपके ऊपर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग भी लग सकती है। कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग का प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया? इट इज इन सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी। नाउ एसएसपी साहब आते हैं कोर्ट के सामने एंड कहते हैं, सर हमने पिटिशनर को रिलीज कर दिया। कोर्ट कहती है, मगर आपने उनको कस्टडी में रखा ही क्यों था? उन्होंने कहा, हमने कस्टडी में रखा ही नहीं था, हमने तो उनको हेल्प के लिए रखा था कि वो एक एबडक्शन के केस में हमारी कुछ मदद करे। कोर्ट ने कहा, मदद तो ठीक है, मगर आपने उनको रख ही क्यों लिया 5 दिन के लिए? भाई घर तो जाने देते, घर वालों से मिलने देते, खाना खाने देते, आपने उनको रखा क्यों? तो SSP had no answer to that and court was not very satisfied with the answers and जो petitioner का view था कि उनके साथ क्या क्या हुआ, गलत तरीके से हुआ या नहीं हुआ, वो कुछ अलग कहानी बता रहा था। तो SSP साहब की बात नहीं मानी गई और डिस्ट्रिक्ट जज को ऑर्डर दिया गया कि आप 1 महीने के अंदर अंदर इस पे इंक्वायरी करके, डिटेल इंक्वायरी करके हमें बताओ। अच्छा, यहाँ पे जो मैं कहता हूँ कि पेटिशनर जोगिंदर कुमार है इस पेटिशन में, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, डाली पेटिशन आर्टिकल 32 में उनके भाई नहीं है या उनके दोस्त नहीं है, मगर यहाँ पे पेटिशनर इनको भी कहा जा सकता है। देयर इज नो बार इन लॉ। सो नाउ, अब इसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस शुरू होती है, इस केस में क्या क्या ऑब्जर्व किया गया और उसके बाद क्या डायरेक्शन दी। नाउ ह्यूमन राइट्स आर एक्सपैंडिंग, क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग एंड सो आर द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वायलेशन ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट। ह्यूमन राइट्स हमारे एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स में अलग अलग चीजें ऐड करी जा रही हैं। अगर कोविड आता है तो बताया जाता है कि आपको ऑक्सीजन मिले, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका राइट टू लाइफ है, आपकी प्रिवेसी आपका राइट टू लाइफ है, साफ एनवायरमेंट आपका राइट टू लाइफ है। ये सारी चीजें धीरे धीरे जुड़ती गई हैं आर्टिकल 21 में, नहीं तो आर्टिकल 21 बहुत नैरो था एंड नाउ दे आर एक्सपैंडिंग बिकॉज पीपल आर बिकमिंग मोर वोकल। रील्स हैं, टिकटॉक है, तो you are getting empowered with everything that is there in market that can give you a medium to voice out, and people are actually using these platforms for good purposes. There's a lot of pages जो जिनके बहुत अच्छे following है and people actually come and read their posts and they're doing a good job. They get things, the people's opinion to other people and in the market, and it actually affects the पॉलिटिकल पार्टी दैट इज रूलिंग, एंड उनकी काफी सारे कैंपेन चलते हैं, कभी थैंक यू मोदी जी चल रहा है, कहीं पे केजरीवाल के खिलाफ कुछ हो जाता है, कभी गांधी के खिलाफ, तो उनका ओपिनियन मैटर करता है। इस वजह से ह्यूमन राइट्स आर नाउ एक्सपैंडिंग। उसी के साथ साथ क्राइम रेट भी इंक्रीज हो रहा है और कंप्लेंट्स भी इंक्रीज हो रही है। क्राइम रेट भी इंक्रीज हो रहा है तो अलग अलग तरह के क्राइम्स आते जा रहे हैं, साइबर क्राइम्स आ रहे हैं, अलग अलग मीडियम के थ्रू क्राइम्स आते जा रहे हैं, एंड कंप्लेंट्स भी इंक्रीज हो रही हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट भी बहुत ज्यादा हो। अच्छा, ये बात 1994 में करी जा रही है, तो वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, वो आप आज की स्थिति के हिसाब से भी सोच सकते हैं, इट स्टैंड्स ट्रू राइट नाउ ऑल्सो, बट उस टाइम पे भी ये ट्रू था। उस टाइम पे भी कुछ नई चीजें आई होंगी, नए अरेस्ट आए होंगे, नए तरह के क्राइम्स हुए होंगे, और उस टाइम पे भी इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये आया, कोर्ट ने ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया, हाउ डू वी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल बीइंग अरेस्टेड। जो हमने पहले बात करी कि डिलेमा क्या था, कि अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो हो सकता है उसने कुछ ना किया हो तो उसके राइट्स इन्फ्रिंज हो जाते हैं, हो सकता है उसने कुछ किया हो और अगर हम उसे ना अरेस्ट करें तो सोसाइटी के राइट्स इन्फ्रिंज हो जाते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा जोर लगाते हैं तो पुलिस ऑपरेसिव है, और अगर ज्यादा जोर ना लगाएं
तो पर्सन एट लार्ज है एंड पुलिस लेजी है। तो इसके बीच में हम बैलेंस बनाए कैसे एंड क्यों बनाए? क्यों का आंसर ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑपरेसिव ऑफिसर्स इज नेसेसरी इन अ फ्री सोसाइटी एंड इज एज important as that is to check the number and quality of arrests that take place। क्योंकि ये जरूरी है एक फ्री सोसाइटी मेंटेन करने के लिए कि किस तरह के अरेस्ट हो रहे हैं और कितने अरेस्ट हो रहे हैं, इस चीज पे एक एक चेक रखा जा सके। और हमारे यहाँ पे उस टाइम पे जो इन्होंने एक रिपोर्ट को ऑब्जर्व किया, उसमें ये था कि 66% ऑफ द अरेस्ट दैट आर बीइंग मेड इन इंडिया, दे आर अननेसेसरी इररेलेवेंट अरेस्ट, किसी को भी इलीगली अरेस्ट किया जा रहा है। एंड इन अरेस्ट के ऊपर स्पेंडिंग जो है जेल बजट की वो 40% है। 40% उनके खाना पीना रखना, लाइट बिजली, सारी चीजों में आना ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, ऑफिसर्स को रखना, उनकी सैलरीज देना, कपड़े बनाना, पानी वगैरह एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजों की जो रिक्वायरमेंट है वो बजट से जाती है। और 40% बजट हम 66% अनआइडेंटिफाइड इलीगल अननेसेसरी अरेस्ट के ऊपर खर्च करते हैं। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि हम क्रिमिनल लॉ को कैसे एफिशिएंटली यूज करें और कैसे इन इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट को खत्म करें। खत्म तो नहीं कर सकते, परफेक्शन नहीं हो सकती, बट कैसे हम इनको कम करें। तो इन चीजों के जवाब में कई सारे बड़े बड़े ज्यूरिस्ट के ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे कंपाइल किया गया और उनको नोट किया गया। जैसे जस्टिस एंड दीज थिंग्स आर दोज जो आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस में। जैसे जस्टिस कार्डोजो ने कहा that protection of an individual would only be achieved at a disproportionate loss to the society। अगर आप ये चाहते हो कि हम किसी को अरेस्ट करें और उसकी कोई इन्फ्रिंजमेंट ना हो राइट की, तो फिर सोसाइटी का कुछ ना कुछ लॉस होगा। हो सकता है वो छूट जाए, हो सकता है 5-6 घंटे 10 घंटे 2 दिन के लिए वो बाहर रहें और उस टाइम में वो किसी और के ऊपर अटैक कर दें या टैंपरिंग ऑफ एविडेंस कर दें या कुछ और गलत काम कर दें। तो एक डिस्प्रोपोर्शनेट लॉस सोसाइटी का बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑपरेशन ना करें, और हम ऑपरेशन करें तो फिर इंडिविजुअल का राइट कहीं ना कहीं जाएगा। अब उसका जवाब क्या है? उसका जवाब हम आगे मिलेगा, एक जवाब। उसी तरीके से जस्टिस हैंड ने भी कहा कि लाइक एनी अदर ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, criminal proceedings must be a compromise। Criminal proceedings to be human institutions because we are not perfect, we cannot be there where the crime is going to happen। जब crime हो जाएगा उसके बाद ही हम वहां पहुंच पाएंगे। We are humans and वैसे इंस्टीट्यूशन में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, हम परफेक्शन अचीव कर ही नहीं सकते। नेवरदलेस ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज क्वालिटी ऑफ नेशन सिविलाइजेशन कैन ओनली बी एनालाइज्ड बाय द मेथड दैट इट एम्प्लॉयज इन द एनफोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। एक कंट्री के अंदर क्रिमिनल लॉज को कैसे कैरी आउट किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उस चीज से हमें पता चलता है एक नेशन कितना सिविलाइज है, कितना आगे बढ़ चुका है, कितना सहज है, कितना समझदार है ये नेशन। तो अमेरिका की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नीदरलैंड जैसी कंट्रीज की हम बात करते हैं कि यहाँ पे न्यूजीलैंड में, कनाडा में दे आर डूइंग सच अ गुड जॉब। क्राइम कन्विक्शन रेट इज हाई, अरेस्ट ठीक टाइम पे ठीक तरह से अरेस्ट हो रहा है, ठीक टाइम पे एविडेंस आ रहा है, ठीक टाइम पे ट्रायल्स हो रहे हैं। इन सारी चीजों से ये दिखाई देता है दैट दी सोसाइटी इज सिविलाइज्ड। देयर आर lot more civilization has penetrated that society than what has penetrated India because of so and so many reasons, population, illiteracy and everything। But nevertheless, that somehow at some point tells that India सिविलाइजेशन में, चाहे कितनी पुरानी सिविलाइजेशन हो, हिंदू हो और हमने बड़े बड़े काम किए हो, मगर इस टाइम पे अगर हम कंपेयर करें तो हम सिविलाइज कंट्री उतनी नहीं मानी जाती जितनी दूसरी कंट्रीज जहाँ पे क्रिमिनल लॉ की एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है वो मानी जाती है। ये रिपोर्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 66% अननेसेसरी अरेस्ट कंज्यूमिंग 42% ऑफ द टोटल जेल बजट। इस डिलेमा को एक आंसर मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका से इन द केस ऑफ मिरांडा वर्सेस एरिजोना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राष्ट्रवादी अप्रोच है इनकी, एक नेशनलिस्ट अप्रोच है जो आजकल बहुत लोगों को नहीं पसंद आती। कई लोग उसके खिलाफ हैं तो रीजन के लिए या गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, जो भी चीजें हैं, दैट द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट यील्ड टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर आपको लगता है कोई बंदा दंगा करा सकता है, कोई गलत बात बोल सकता है, कुछ चीजों में अड़चन डाल सकता है,
आप उसको जेल में डालो. द rightfulness, the right benefit of the state that it deserves, it comes above and over the right of one private individual. This was the opinion, and then if this opinion is something that you support, tell me in the comment box. एंड इसके साथ एक फेमस मैगजीन है हमारा लीगल मैगजीन जो है सैलिस पॉपुली एस सुप्रीम लेक्स, विच मीन्स गुड ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई सुप्रीम लॉ है, सर्वोत्तम विधि है समवॉट. सो ये सारी चीजों को डिस्कस करते हुए जोगिंदर कुमार में ये डायरेक्शंस दी गई कि आप एक फ्रेंड को इन्फॉर्म करो, अगर किसी को अरेस्ट करते हो तो एक एंट्री करो और उसको उसके अरेस्ट के बारे में उसके फ्रेंड को इन्फॉर्म करो. ये कहाँ से लिया गया? क्रिमिनल एक्ट ऑफ 1984 ऑफ वहां के सेक्शन 56 से. अगर ये चीज ये सो आई व्हाट आई डू व्हेन आई मेक लेक्चर्स, आई डोंट नो ऑल दिस स्टफ ऑलरेडी ऑब्वियसली. तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना रिसर्च कर सकूं उतना रिसर्च करके जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो कोटेबल चीजें हैं एग्जामिनेशंस में एंड मे बी समवेयर एल्स, वो सारी चीजें मैं यहाँ डाल दूं. तो अगर आप कहीं पे कोट करते हैं क्रिमिनल एक्ट ऑफ इंग्लैंड 1984 सेक्शन 56 से ये लिया गया है कि आप इन्फॉर्म करेंगे एक फ्रेंड को और एंट्री करेंगे डायरी में, जिसको सेक्शन 41 और सेक्शन 50 और 50A में डाला गया है सीआरपीसी, इज गोइंग टू अर्न यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द आईज ऑफ द पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर. नाउ सेकेंड थिंग, यू विल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन अबाउट द प्लेस दैट ही इज डिटेन्ड. आप उसको भी बताएंगे आप कहाँ पे डिटेन. मगर ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सा सेंटेंस हो गया, बिकॉज आपने जब ऊपर उसके दोस्त को बता दिया कि वो कहाँ पे है और उससे ही पूछा कि हम कौन से दोस्त को बताएं, तो ऑब्वियसली फिर आपने बता ही दिया ना कि वो कहाँ पे है. तो अलग से अरेस्टेड पर्सन को बताने का कि वो कहाँ पे है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया आज की सीआरपी. Third point, CRPC has to magistrate has to make sure that the procedure in the code is followed. Magistrate के ऊपर ये ड्यूटी डाल दी है कि he will make sure कि जो भी हमने यहाँ पे प्रोसीजर बताया और जो भी प्रोसीजर सीआरपीसी में है वो फॉलो किया गया. अगर नहीं होता तो मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कॉन्टेम्प्ट हो सकता है. कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग कौन से सेक्शन में चलती है सीआरपीसी में? 345 में उसका प्रोसीजर दिया गया कॉन्टेम्प्ट का. आप राइजिंग ऑफ द कोर्ट से पहले पहले उसको सजा दे सकते हैं. बड़ी सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीज है. नाउ क्लोजिंग रिमार्क्स में जस्टिस वेंकट चलैया ने वॉर्न किया, गाइडलाइन दी और एक बहुत अच्छी लाइन भी कही कि नो अरेस्ट शुड बी मेड जस्ट बिकॉज द पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू डू सो. आप खाकी पहनते हैं, आपके पास पावर है, सितारे हैं, सिर्फ इस वजह से आप किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे. आपके पास पावर है वो एक चीज है, मगर उसको आप किस तरीके से यूज करते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, वो एक दूसरी चीज है और उसको आपको जस्टिफाई करना होगा. उनके बीच में डिफरेंस देखना होगा और उस हिसाब से सही तरीके से चलना. सेकेंडली उन्होंने वार्न किया कि पुलिस ऑफिसर्स शुड मेक अ रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन, अपने इंटरेस्ट में भी और सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी, क्योंकि आगे जाके आप जजमेंट्स में ये देखेंगे, जो अभी जजमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, कि पुलिस ऑफिसर्स को भी लताड़ा गया, डांटा गया, उनको पैसा देने को बोला गया, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन देने को बोला गया और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करी गई, उनको कन्विक्ट भी किया गया. तो पुलिस ऑफिसर ढंग से अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में तो है, उनके खुद के इंटरेस्ट में भी है. और ये जो गाइडलाइंस हमने दी हैं, दे हैव टू बी फॉलोड अनटिल एंड अनलेस प्रोविजंस बन जाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू. मगर प्रोविजंस बहुत देर बाद बने, 2005-2010 में जाके ज्यादातर प्रोविजंस सीआरपीसी में आए. तो इन्होंने कहा कि इन गाइडलाइंस को माना जाए और बाकी की गाइडलाइंस हम आगे आते आते देंगे. नेक्स्ट केस पे हम आ जाते हैं डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसका असली नाम है डीके बासु अशोक के जौहरी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड स्टेट ऑफ यूपी 1996. क्योंकि ये सिर्फ एक पिटिशन नहीं है, इसके अंदर दो पिटिशन हैं जो दो लेटर्स में से निकली हैं. पहला लेटर 26 अगस्त 1986 को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द लीगल एड सर्विस सोसाइटी ने भेजा, जिनका नाम था डीके बासु. और उन्होंने द देन ऑनरेबल सीजेआई को ये बताया कि 20, 21 और 22 तारीख जुलाई की 1986 में 3 कस्टोडियल डेथ्स हुई. और ये भी बोला गया कि इन क्राइम्स जो हो रहे हैं कस्टडी के अंदर, स्टेट इनको हशअप कर रही है अपने रिकॉर्ड्स को सीधा रखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारी हमारी स्टेट बहुत अच्छा काम कर रही है. इस चीज के लिए इनको छुपाया जा रहा है और उस वजह से फ्लरिश कर रहा है क्राइम.
शह मिल रही है क्रिमिनल्स को कि आप और करो, क्योंकि स्टेट तो हशप कर रही है, क्योंकि पुलिस ही खुद करप्ट है। उसी चीज पे नोट करते हुए एक लाइन और बहुत अच्छी बोली जस्टिस आनंद ने कि द रेमेडी टू अ डिसीज शुड नॉट बी वर्स देन डिसीज इटसेल्फ। हम क्या रोकना चाह रहे हैं यहाँ पे? डिसीज क्या है? क्राइम। और उसको रोकने के लिए हम रेमेडी क्या लाए? पुलिस। और पुलिस खुद ही इतनी करप्ट है कि और ज्यादा क्राइम हो रहा है, छुपा भी रही है, खुद क्राइम भी कर रही है। तो रेमेडी जो है वो, दवाई जो है वो डिसीज से भी गंदी है, ये नोट किया उन्होंने। और यहाँ पे डीके बासु कहते हैं कि द क्राइम इज बीइंग हश्ड अप एंड वी नीड टू डेवलप कस्टोडियल जूरिस्प्रूडेंस एंड टू फॉर्म मोडालिटीज। आप मॉडल लॉज बनाओ कि कैसे इन लोगों को सेफ गार्ड किया जाए, और इन जो विक्टिम हो जाते हैं ऐसी चीजों के, उनको कॉम्पनसेट कैसे किया जाए। तब जाके हमारी सीआरपीसी में इन इस लाइन के बेस पे 357 ए बी सी कॉम्पनसेशन के क्लॉजेज आए, प्रोविजंस आए। एंड उसी के साथ साथ हमें विक्टिम की नई डेफिनेशन मिली 2WA में सीआरपीसी के, कि विक्टिम सिर्फ वो नहीं है जिसकी आपने टांग तोड़ी या जिसको आपने जेल में रखा, वो भी है जो बच्चा घर में, जिसको खाना नहीं मिल पाया इस वजह से, या फिर जो रेंट नहीं भर पाया और जिसको घर से बाहर निकलना पड़ा, बाहर रहना पड़ा, या सहना पड़ा कुछ भी, आगे उसकी पढ़ाई रुकी या जो कुछ भी हुआ, वो भी विक्टिम माने जाए। सिर्फ वो नहीं जिसकी आपने टांग तोड़ी है, क्योंकि आप ये बोल दोगे कि वो तो गया, अब विक्टिम तो रहा नहीं, तो हम कॉम्पेंसेशन किसको दें, क्यों दें? विक्टिम नहीं है तो विक्टिम वो भी है जो उसके फैमिली मेंबर्स के भी कुछ राइट होते हैं। इसी तरीके से जब कोई सूट में किसी की डेथ हो जाती है क्रिमिनल केस में, तो आप उसकी अबेटमेंट करा सकते हैं, मगर आपके पास ये चॉइस भी है कि अगर आप किसी के सर से उसका कलंक हटवाना चाहते हैं तो आप उस केस को कंटिन्यू करिए। जिसके ऊपर एलिगेशन थी उनकी डेथ हो गई, मगर उनके एलआर जो हैं, उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो उस केस को लड़ सकते हैं। ये प्रोविजन है सीआरपीसी में, 394 पढ़ सकते हैं। अब 26 अगस्त को ये एक लेटर आया, मगर 6 महीने तक तो कुछ इसमें हुआ नहीं। 9 फेब को इसका संज्ञान दिया गया और मांगा गया, एक नोटिस भेजा गया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को कि आप बताइए कि ये क्या इसका मतलब है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने नेचुरली ये बोला कि ये सब कुछ गलत है, द पिटिशन जो है वो मिसकंसीव्ड है, इनको कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम, वी आर नॉट हशिंग इट अप एंड वी आर इनिशिएटिंग मैटर्स, एंड हम इंक्वायरी कर रहे हैं और हम पहुंचेंगे वहां पर, जरा ठहरो। वो तो भाऊ की तरह, देसी भाऊ की तरह। एंड उन्होंने कहा कि ये मिसलीडिंग है, ये गुमराह कर रहे हैं कोर्ट को, पता नहीं क्या कुछ भी बोल रहे हैं, एंड ये अनटेनेबल है, आप इसको एंटरटेन मत करो। कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, कोर्ट शांति से बैठी है, अभी ज्यादा कुछ किया नहीं। 29 जुलाई को एक लेटर और मिलता है। अब 1 साल हो चुका है बात को, एक लेटर और आया। एंड उस टाइम पे अब सीजेआई को लगा कि दिस इज टू मच, एंड महेश बिहारी जी की डेथ हो गई थी अलीगढ़ में। अलीगढ़ इज इन यूपी, जहाँ पे लॉक्स के लिए फेमस है अलीगढ़, तालों के लिए, तालों की मार्केट है, अलग अलग तरह के ताले और चाबियां। सो ये जब एक लेटर आया, तो जो द बिजनेस इन सुप्रीम कोर्ट, वो उसमें थोड़ी तेजी, गर्मी दिखाई दी, और 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट से बोला कि सारी की सारी स्टेट्स हमें सजेशंस दो, अपने एफिडेविट्स भरो। लॉ कमीशन को बोला कि अपने भी आप सारी की सारी जो भी आप चाहते हो क्या कर सकते हैं तो वो बताओ। और लॉ कमीशन ने बड़ा अच्छा एक सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि 114 बी इंट्रोड्यूस करो इंडियन एविडेंस। 114 ए तो है ही, 114 बी भी इंट्रोड्यूस करो, जिसमें क्या होगा कि प्रिजम्पशन होगी कि अगर पुलिस कस्टडी के अंदर रहते हुए किसी को चोट लगी है, तो ये मान लिया जाए, ये प्रिज्यूम कर लिया जाए कि पुलिस वालों की वजह से ही चोट लगी और पुलिस वाले ही उसके लिए जिम्मेदार। बहुत अच्छा प्रोविजन होता, बहुत चेक लग जाता पुलिस वालों के ऊपर। इस चीज से मिसयूज भी हो सकता था, मगर मिसयूज सारी चीजें ही होती हैं, मगर एक चेक लग जाता। मगर इसको इंट्रोड्यूस किया नहीं गया इंडियन एविडेंस एक्ट में। छत्तीसगढ़ में 114 बी बना एक अमेंडमेंट में, मगर वो इससे रिलेटेड नहीं। अब इस केस में ऑब्जर्वेशन क्या हुई, लिटरेचर क्या थी, जूरिस्प्रूडेंस क्या थी? कोर्ट ने कहा, पहली चीज का आंसर दिया कि हमें क्यों चाहिए, क्रिमिनल लॉ पे हम बात क्यों करें। वो इसलिए करें क्योंकि देर इज अ डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो इफेक्ट पड़ता है क्रेडिबिलिटी ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के ऊपर जब ऐसी चीजें होती हैं। रूट्स सड़ती हैं, जड़ें सड़ती हैं और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। ये डोमिनोज पिज्जा वाला डोमिनोज नहीं है, ना ही इसका जो ओरिजिन है वो डोमिनोज पिज्जा वाले की मतलब है कि डोमिनोज जो है वो अलग ही चीज थी, उसका कोई ऐसा मतलब नहीं है जो यहाँ पे मतलब। डोमिनोज का कोई मतलब ही नहीं है, वैसे वो एक चेन थी
जो पहले डोमिनिक्स के नाम से थी, जिससे खरीदी थी, एंड डोमिनिक ने बोला मेरा नाम यूज मत करो, तो उन्होंने अपना नाम डोमिनो रख लिया। उनके एक शायद डिलीवरी करने वाला एक लड़का था, उसने बोला डोमिनोज रख लो, तो उन्होंने डोमिनोज रख दिया। तो डोमिनो इफेक्ट का मतलब है, जिससे आप ताश के पत्ते देखते हैं एक साथ लगे हुए होते हैं और उसको धक्का मारते हैं, सारे ताश के पत्ते एक साथ गिर जाते हैं। या साइकिल्स खड़ी होती हैं, साइकिल से लात मारते हैं, बहुत सारी साइकिल एक साथ गिर जाती हैं। बहुत सारी गोविंदा अमिताभ बच्चन की मूवी में लात मारी, साइकिल पे गिरे, साइकिल सारी ठक 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 साइकिलें गिरनी शुरू हो गई। वो डोमिनो इफेक्ट होता है, एक एक के बाद एक, और एक की वजह से जो इफेक्ट हुआ वो वहां रुका नहीं। ये सिर्फ ये साइकिल गिर गई, इस पे कोई और चोट नहीं लगी, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये साइकिल पे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, उसकी वजह से आगे सैकड़ों साइकिलें गिर गई। ये डोमिनो इफेक्ट होता है, घूम के वापस आने वाला इफेक्ट होता है। जैसे हम एसी चलाते हैं, गर्मी हो रही है, हम चाहते हैं कि अंदर ठंडक हो जाए, हम ठंडक के लिए एसी चलाते हैं, और एसी वापस गर्मी और ज्यादा फेंकता है एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट और ज्यादा गर्म हो जाता है। ये डोमिनो इफेक्ट होता है ये। और जो हम ठंडा कर रहे हैं, जिस चीज से हम ठंडा कर रहे हैं, उस चीज से हम गर्म कर रहे हैं किसी चीज को। उसी तरीके से हम चाहते हैं पुलिस हमें प्रोटेक्ट करे, मगर पुलिस ही हमें ऑप्रेस कर रही है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि डोमिनो इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे लोगों का शक आ रहा है एक तरीके से, कि पुलिस से इंटरेक्शन होती है लोगों की, पुलिस करप्ट हो जाती है, पुलिस प्रॉपर अरेस्ट नहीं करती है, इलीगल अरेस्ट करती है, कन्फाइनमेंट करती है। लोगों को ये लगता है कि सारी गलती कोर्ट की है। आगे जाके कोर्ट को सबूत नहीं मिल रहा, कोर्ट को काम नहीं करने दे रहे हैं, कोर्ट को कुछ मिल ही नहीं रहा है, एडवोकेट्स भी कुछ नहीं ला पा रहे हैं, विक्टिम भी कुछ नहीं ला पा रहे, क्योंकि पुलिस ने सारा गेम ही बिगाड़ दिया शुरू में ही। कुछ लिया दिया, आगे पीछे किया, एंड सारी चीजें सेट हो चुकी हैं, वहीं पे एडजस्ट हो चुकी हैं सारी चीजें। तो उस वजह से लोगों को ये लगता है कि जस्टिस, अब बस आपने, जो पुलिस थी उन्होंने तो मौके पे जाके जो काम करना था, जो एविडेंस को खुर्द-बुर्द करना था, करवाना था, वो सब कर दिया। जिन्होंने भी करवाया, नॉट एवरीवन इज करप्ट, बट जितनों ने भी करा, उनकी वजह से इस पार्टी को तो ये लगा कि 2 दिन तो पुलिस से इंटरेक्शन हुई थी, मगर 10 साल तो हमारी मैजिस्ट्रेट से और जजेस से इंटरेक्शन हुई है, और उसके बाद हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो गलती किसकी? जजेस की। तो गलती पुलिस वालों की है असल में। मगर जो डोमिनो इफेक्ट है वो किसके ऊपर आया? जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के ऊपर, जिसमें जजेस। नाउ अलग एक लाइन, बहुत हैवी लाइन कही, टॉर्चर इज एन एंग्विश स्क्वीजिंग इन द चेस्ट, कोल्ड एज आइस, हेवी एज स्टोन, पैरालाइजिंग एज स्लीप एंड डार्क एज अबिस। टॉर्चर की कितना संगीन अपराध है किसी को टॉर्चर करना और इलीगली अरेस्ट करना, कन्फाइन करना, इस चीज पे ये लाइन थी। और इसको आप अगर कहीं कोट करते हैं, it will be a beautiful addition to whatever you are writing, whether it is an article that you are working on, it is a paper that you're writing, anything that you're working on, something that can be quoted। 114 बी के बारे में मैंने आपको बता दिया। कोर्ट ने यहाँ पे सजेशंस दिए, व्हाट वी नीड इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। पारदर्शिता होनी चाहिए कि पुलिस क्या कर रही है, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कैसे बना के रखे। तो उसी लिए हमारे सीआरपीसी में अगर आप देखेंगे तो प्रोविजंस बनाए गए कि आप द पुलिस शैल मेक एंट्रीज इन द डायरी। ये शैल पहले मे हुआ करता था 2005 से पहले, उसको शैल किया गया। पुलिस जो होगी वो नोटिस ऑफ अपेयरेंस देगी, पुलिस जगह जगह पे एंट्रीज करेगी और मैजिस्ट्रेट को देगी, फोर्थविद रिपोर्ट अपनी सेंड करेगी। 154 के आगे आप जितने भी प्रोविजंस देखोगे, 167, 158 रिपोर्ट हाउ मेड, इन सारे प्रोविजंस में आपको दिखेगा कि जो रिपोर्टिंग हुई है वो इतनी बार हुई है कि पुलिस को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैजिस्ट्रेट को देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से काफी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनती है आगे जाके। और कई जगहों पे पुलिस फंस जाती है, कोर्ट सुलझा पाते हैं एक केस को। देन यू नीड अ बेटर वर्क कल्चर, ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, बिकॉज हमारे यहाँ की जो पुलिस है उनका वर्क कल्चर ही इतना खराब है दैट दे डू नॉट नो हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल, हाउ टू मेक अ ह्यूमन इंटरेक्शन ह्यूमन। They think of us, they are made to think of us, or they are never made to think of us like humans। We are just people coming to पुलिस स्टेशन एंड अपनी कंप्लेंट लिख, भाई कुछ हुआ है, चलो इसमें से कितना पैसा कमा सकते हैं ये देखो, या इसमें कौन पार्टीज हैं ये देखो, ये सारी चीजें। तो उस कल्चर को सेट करने के लिए there's a very good friend of mine, a mentor of mine, Anish Tuneem, who has been working on the project of community policing,
and he has taken formal education in USA. He has been on our platform for many times. He has been there, and वो बताते हैं बड़ी सारी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, एंड हाउ कम्युनिटी पुलिसिंग टेक्स प्लेस. आप यू कैन चेक हिम आउट ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, कि कैसे हे ब्लूज नाम का उनका एक है कुछ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत काम होता है कि कैसे पुलिस कैन टेक हेल्प ऑफ द सोसाइटी, एंड सोसाइटी एंड पुलिस कैन एक्चुअली वर्क टुगेदर अगेंस्ट क्राइम एंड डू समथिंग गुड. देन काउंसिल शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग इंटेरोगेशन. काउंसिल का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है. ये 41D में डाल दिया गया है. ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलता है. राइट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू बी प्रेजेंट, रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर. 302, 303, 304 पढ़ लो, उसमें भी आपको काउंसिल के बारे में पता चलेगा कि आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप खुद भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो एक कोर्ट के अंदर. ये 303 में आपको मिलेगा. कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मैं खुद अपना केस लड़ सकता हूँ. यस, यू कैन, आफ्टर द ड्यू परमिशन ऑफ द कोर्ट, यू कैन डू इट. 303. एंड डेवलपिंग सेंसिटिविटी इन पावर. पावर आपको मिली है, मगर यू डू नॉट नो, यू डू नॉट हैव द सेंस कि आपको कैसे ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करना है. हाउ यू हैव टू कम अक्रॉस चिल्ड्रन. कई सारे इंस्टेंसेस में पुलिस men are throwing away children, beating children. एक्चुअली एक केस हम आगे पढ़ेंगे जिसमें बच्चे की टांग तोड़ दी, उसको बुखार चढ़ा, न्यूमोनाइटिस हो गया, एंड द किड डाइड, 9-year-old kid. So this is where sensitivity lacks and is needed. ये कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जहाँ जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने करी. टू बी जस्ट इवी रेमेडियम मीन जहाँ पे आपको घात होता है आपकी राइट्स के खिलाफ, वहां पे रेमेडी जरूरी है. इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टिव. डीपीएसपी की तरह नहीं है कि सिर्फ डायरेक्शन है. इट इज एनफोर्सेबल. आपको रेमेडी मिलेगी, चाहे आप कॉम्पेंसेशन मांगो, आप पुलिस के खिलाफ उनकी कन्विक्शन मांगो, आप पब्लिक लॉ में जाओ, प्राइवेट लॉ में जाओ, किसी भी राइट में जाओ, लॉ में जाओ, आपको रेमेडी मिलेगी. इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टिव. जो लॉ आपको आपके ऊपर राइट देता है, आपको पावर देता है, वही आपके ऊपर लिमिटेशन भी लगाए. ये बहुत जरूरी है. उस टाइम पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं थी. उस टाइम पे 41 क्या कहता था? एनीवन कंसर्न इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अरेस्ट करो, अंदर डालो. नाउ 41 इज द प्रोविजन जो आपको पावर भी देता है और आपके ऊपर लिमिटेशन भी लगाता है कि आपको नेसेसिटी रूल को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपीयरेंस का नोटिस देना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा बिफोर यू मेक एन अरेस्ट. When the right is guaranteed by the state, it should be remedied by the state itself. यहाँ पे कोर्ट ने बात करी कि आप स्टेट जो है उसने प्रॉमिस किया है कि हम सबको प्रोटेक्ट करेगी. तो अगर उसी के ऑफिसर्स हमारे खिलाफ कुछ करते हैं तो स्टेट की जिम्मेदारी बनती है. स्टेट ये नहीं बोल सकती कि आई एम सॉवरन, आई एम इम्यून. दैट विल नॉट हैपन. आगे जाके पॉइंट आएगा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है. आप सॉवरन इम्यूनिटी क्लेम यहाँ पे नहीं कर सकते. सॉवरन इम्यूनिटी क्या होती थी कि किंग्स के जमाने में ये माना जाता था कि किंग्स जो हैं वो भगवान का रूप, और भगवान कोई गलती नहीं कर सकता. जब कोई गलती नहीं कर सकता तो गलती को उपज भी नहीं कर सकता, गलती की अबेटमेंट भी नहीं कर सकता, गलती में फैसिलिटेशन भी नहीं कर सकता, हेल्प भी नहीं कर सकता, कॉन्स्पिरेसी भी नहीं कर सकता. बट दैट डज नॉट अप्लाई वेयर यू हैव defeated the rights, the fundamental rights of people, and people can actually go against you and they can claim monetary compensation from you. स्टेट विल हैव टू पे. डॉक्टर रिनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 5-5 लाख रुपए पेटिशनर्स को दोनों को दिलवाए गए बिकॉज 2 women वर टेकन बाय पुलिस ऑफिसर्स इलीगली अरेस्टेड. उनको एक विकलांग डब्बे में बिठा के लिटा के ठंडे जमीन पर लाया गया, एंड फॉर दैट पुलिस वर मेड लाइबल. पुलिसमैन वर आस्क्ड टू पे 5 लाख ईच टू द पेटिशनर्स, एंड स्टेट से लिए गए पैसे. स्टेट को बोला गया आपको अब अपने ऑफिसर से पैसे लेने हैं लो, नहीं लेने मत लो, बट 5 लाख रुपए दो. The action against oppression may be penal, civil, under public law, and even private law. I've already told. And courts can grant monetary relief while exercising their constitutional power for those whose indefeasible right under Article 21 has been infringed. उन्होंने क्लियर किया कि कोर्ट जो है वो मॉनेटरी रिलीफ भी दे सकती है. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर कोई ये बोलने आया कि किसी को wrongfully confine किया गया तो we are limited only to bring that person back from the confinement. It is not that. You can also give monetary relief. आप बाकी की रिलीफ भी दे सकते हैं. सपोज आपका एक मुकदमा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है आपके घर पे विदाउट दी ड्यू प्रोसेस बीइंग फॉलोड, तो आप कहाँ जाएंगे? स्पेसिफिक रिलीफ में जाएंगे कि मुझे मेरा पोजेशन वापस दिलाओ, 6 महीने के अंदर सूट डालेंगे. उसके साथ साथ कोर्ट इस जजमेंट के थ्रू ये भी बता देती है कि आप हाई कोर्ट के पास भी चले जाइए और उनको बोलिए कि भाई हमारा
हमें डिस्पोजेस किया गया है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है, 300A का, आर्टिकल 300A का भी उल्लंघन हुआ है इसके अंदर, तो आप हमें पोजेशन वापस दिलाइए और हमें मॉनेटरी रिलीफ भी दिलाइए, वो सब हो सकता है। दैट इज व्हाट इट मीन। नाउ ऑब्जर्वेशन, कुछ दूसरे ज्यूरिस्ट की, लॉर्ड डेनिंग की यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यूज करी गई, दैट पिक एंड शॉवेल आर नॉट apt for mining now, and in the same way courts have to experiment with newer machinery now. नई मशीनरी के साथ काम करो। फावड़ा, तसला और गहती जो थी, पहले उस तक आप पेड़ लगा सकते थे या माइनिंग कर सकते थे। आज की डेट में आप अगर फावड़ा लेके जाओगे तो एक दिन में 10 पेड़ लगा पाओ, उससे ज्यादा नहीं लगा पाओगे। नाउ यू हैव टू यूज द मशीन। मशीन वो अपने आप गड्ढा करती है, अपने आप उसमें सीड डालती है, अपने आप उसमें पानी चला जाता है, इरिगेशन फैसिलिटी, ड्रॉप इरिगेशन हो जाती है और अपने आप पेड़ उग जाते हैं। माइनिंग भी उसी तरीके से बड़ी बड़ी मशीन से होती है। तो नाउ यू ऑल्सो हैव टू कम आउट ऑफ द मैकेनिकल अप्रोच, एंड नाउ यू हैव टू यूज डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे इंजंक्शन, रोको कि अब आप डिस्पोजेस नहीं करोगे, जो उल्लंघन आप कर रहे हो वो मत करो। डिक्लेरेशन कि आपका टाइटल है, आपका पोजेशन है, आपका घर है, आपको एडवर्स पोजेशन है, आप लो इस पोजेशन को। वेरी रिसेंट केस, ग्रेवाल वर्सेस कौर ऑन एडवर्स पोजेशन, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, डिक्लेरेशन जो है आपको कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है एडवर्स पोजेशन उसी टाइम पे। एंड एक्शंस फॉर नेग्लिजेंस, अगर नेग्लिजेंस हुई है स्टेट से तो आप उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हो। आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करो, डोंट बी मैकेनिकल अबाउट योर powers and the ways that you can use to bring about justice to people who have come before you with us. That is hope. A lot of Hindi in this picture. So observation as to compensation, दूसरी observation, vicariously liable है state strict liability बनती है, sovereign immunity यहाँ पे अप्लाई नहीं करती, I've already told you. एंड यहाँ पे गोल क्या है हमारा, हमें करना क्या है? प्रिवेंशन हमारा गोल नहीं है, परफेक्शन हमारा गोल नहीं है, बिकॉज दैट इज अनअचीवेबल। वो तो हो ही नहीं सकता। हमने पीछे कमेंट्स देखे बड़े बड़े ज्यूरिस्ट के, दैट इज अनअचीवेबल। जस्टिस कार्डोजो, जस्टिस हैंड ने कहा दैट परफेक्शन नहीं ला सकते हम, देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रोमाइज। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अप्लाइंग बाम टू द वुंड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अपोलोजाइजिंग सिंसियरली। अपोलोजाइजिंग का मतलब ये नहीं है कि जज साहब सॉरी बोलने आ रहे हैं या फिर पुलिस वालों को मुर्गा बना दिया। Apologizing means that you have to actually mulct these people who have infringed their rights in at least monetary compensation का बोझ डालो पर at least injunction लगाओ, उनके खिलाफ कुछ करो actively. That is where you apologize sincerely to the people who have lost their rights and even lost their loved ones. And becoming a support to the sufferer is important. That is what is important. You become a support to the people जिनकी rights को infringe किया गया, हो गया तो हो गया, उसको नहीं रोका जा सकता था, but at least you become a support to them, at least apply some balm. अब now these were important directions, ये सारी directions को हमारे section 41 के अंदर include किया गया डी के बासु। Police officers to bear accurate tag of identity 41B में डाला गया है। Police to prepare memo with all the relevant information of arrest 41B again, आप मेमो बनाओगे, उसको काउंटर साइन करवाओगे, रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ लोकेलिटी ढूंढ के लाओगे, उनसे उसमें अटेस्टेशन कराओगे, ये सारी चीजें करोगे 41B। पुलिस टू इन्फॉर्म अ फ्रेंड रिलेटिव ऑफ द पर्सन अरेस्टेड अबाउट द अरेस्ट एंड प्लेस ऑफ डिटेंशन, पहले ही बता चुका हूँ। 50A में इसको डाला गया, 50 में इसकी बात करी गई है, इन सब चीजों के बारे में बात करी गई है। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू बी अवेल्ड एट हिज रिक्वेस्ट, बंदे की मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको आपने अरेस्ट किया है उसकी एग्जामिनेशन अगर वो चाहता है तो होगी। सेक्शन 54 देखिए। सेक्शन 53 में इफ द पुलिस ऑफिसर वांट्स ही कैन मेक अ रिक्वेस्ट, कम से कम इंस्पेक्टर होना चाहिए, बट ही विल मेक अ रिक्वेस्ट एंड उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जाएगी अगर उनको लगता है कि कुछ एविडेंस मिल सकता है। साथ ही साथ में if it's a rape case, then the person, the victim can be, the accused can be then in that case for evidence medically examined. उसी के साथ साथ आप 164A भी पढ़ सकते हैं, वहां पे जब रेप विक्टिम होता है उसकी एग्जामिनेशन करानी हो तो वहां पे उनकी एग्जामिनेशन, ये सारे नए नए प्रोविजन को ऐड किया गया। देन मेडिकल एग्जामिनेशन एवरी 48 आवर्स, तो किसी को भी अरेस्ट करते हैं उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करी जाती है कि कोई चोट के निशान न दिख जाए या ऐसा कुछ ना हो कि उसको पहले ही परेशान किया गया है, तो 54 में आपको दिखेगा।
all documents including the memo to be sent to the magistrate in reasonable time. सेक्शन 154 से आप आगे इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 के जितने भी सेक्शंस देखेंगे 176 तक, आपको ये दिखेगा कि सारी चीजें 173 में भी कहा गया मैजिस्ट्रेट को भेजो, 154 में भी कहा गया, 156 में भी कहा गया, 158 में भी कहा गया कि रिपोर्टिंग होनी चाहिए प्रॉपर मैजिस्ट्रेट को, सारे डॉक्यूमेंट भेजे जाने चाहिए, सो दैट देयर इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी दैट इज मेंटेन्ड, जो हमने पीछे भी पढ़ा. Then the person who has been arrested should meet his advocate during the investigation, during the interrogation, not throughout the interrogation. During the interrogation आपको मिलने का हक है 41D में, 303 पढ़ सकते हैं, 304 पढ़ सकते हैं, एंड अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ सकते हैं, आप आर्टिकल 20-22 पढ़ सकते हैं. Then the police control room should be made at every district, 41 CEC के ऊपर बेस्ड है. And failure to result in departmental action, पुलिस के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन लगेगा, एंड चार्ज ऑफ कॉन्टेम्प्ट भी लग सकता है, जिसकी प्रोसीजर कहाँ पे 345 में. ये सारी डायरेक्शंस को सीआरपीसी में इंट्रोड्यूस किया डीके बासु ने, बहुत सारी चीजें, सारा का सारा 41 डीके बासु से ही निकल के आया. नाउ वी सी कि 41 एक्चुअली चेंज हुआ कैसे. अब एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि 41 के बारे में इतनी बात करिए तो 41 पता तो है क्या. अब सेक्शन 41 पहले कैसा दिखता था, ऐसा दिखता था, सिर्फ 2 पेज का, ऐसा एक पेज और ये एक अगला पेज, बस. दिस इज सेक्शन 41 जो पहले था. आज की डेट में 41 ऐसा बन गया है कि आलस आता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते पूरा. आज तो बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा कि पूरा सेक्शन है क्या. तो 41 पहले इतना सा था कि व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकते हो, एंड एनी पुलिस ऑफिसर, पहली बात कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है, कांस्टेबल हो, इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर, कोई भी कर सकता है. ये आज भी यही है, कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है, बिकॉज कांस्टेबल के सामने कोई अरेस्ट हो रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि वो सब इंस्पेक्टर हो तभी उसे अरेस्ट करें. इट कैन बी एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट. वारंट का सेक्शन शुरू हो जाता है 70 से, वहां पे आपको वारंट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा. बिना वारंट के और बिना ऑर्डर के आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, जिसमें ही इज कंसर्न. दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक वर्ड. कंसर्न इज अ वेरी वेग वर्ड. कंसर्न में तो कोई भी सिचुएशन आ सकती है. ही इज कंसर्न का मतलब हो गया कि वो दूर कहीं पे बैठा है और किसी ने बोल दिया थोड़ा सा कि इसने ऐसा कुछ किया है यार, शायद ऐसा लग रहा है, तो ही इज कंसर्न, रेलिवेंट हो गया उसकी, ही इज कंसर्न देयर, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं. दैट वाज प्रॉब्लमेटिक. Or against a reasonable complaint has been made, credible information has been received, or reasonable suspicion exists. These parts are there now also. So, कोई कंसर्न है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, या इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज हुई है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. आज की डेट में ये 41(1)(b) है, एंड 41(1)(1) जो है, जो ए है 41(1), वो कहता है कि प्रेजेंट कंसर्न, जहां पे लिखा है कंसर्न इन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जगह अब हो गया है हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर कमिट टू कॉग्निजेबल. C, who has been proclaimed as an offender either under this code or by the order of the state government, who is in the possession of anything found reasonably suspected to be stolen property, who obstruct the police officer, yeah, who has escaped or attempts to escape, who is reasonably suspected of being a deserter from the armed forces or the union, who has been concerned or against whom reasonable complaint has been received, जिसने बाहर जाके कोई ऐसा क्राइम किया है जो एक्सट्राडिशन लॉज में उसको लाइबल करता है, he should be arrested in India. या फिर जो एक रिलीज कन्विक्ट है मगर 356(5) के रूल्स को नहीं मान रहा है, या फिर कोई ऐसा है जिसके लिए रिक्विजिशन आई है दूसरे पुलिस ऑफिसर से कि आप इसको अरेस्ट कीजिए. इन सारे केसेस में आप इसको अरेस्ट कर सकते हैं. हमें ये, हम नए वाले 41 में इसको पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या क्या है उन्हें भी खोल देंगे पूरा. मगर यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 41 में बाकी सारी चीजें सेम थी, बीच में से सब कुछ गायब था जो आगे अभी आने वाला है. तो 41 सिर्फ इन 2 पेजेस में था. और नेक्स्ट जो 41(2) है वो सिर्फ इतना कहता था, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में in like manner arrest or cause to be arrested any person belonging to one or more of the categories of persons specified in 109 and 110. 109 and 110 में सिक्योरिटी ली जाती है अगर आप एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या फिर आप एक हैबिचुअल ऑफेंडर, सस्पेक्टेड हो या फिर हैबिचुअल ऑफेंडर हो.
अगर ऐसे 2 केसेस हैं तो आपसे सिक्योरिटी ली जाती है। और पहले वाला 41 क्या कहता था कि अगर ऐसा कोई है जो सस्पेक्टेड है और हैबिचुअल ऑफेंडर है, किसी भी टाइम अरेस्ट कर लो, कोई बार नहीं, विच वॉज रॉन्ग। तो ये जो येलो मैंने इसमें मार्क किया है, दिस एंड कंसर्न एंड बी, इन 3 चीजों को अब हटा दिया गया। और क्या क्या नया आ गया है वो अब हमें सेक्शन 41, जो नया सेक्शन 41 है, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या अब नया इंट्रोड्यूस किया गया। सो नाउ, अब जो हमारा 41 है वो कैसे दिखता है? एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। ये जनरल रूल, आज की डेट ये जनरल रूल है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। बाद में उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा है कि 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा, अगर उसने किसी पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई अपराध किया है, फर्स्ट लाइन, किसी ऑफिसर की प्रेजेंस में अपराध किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप उसको अरेस्ट कर लो। सिर्फ 2 चीजें, प्रेजेंस चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस चाहिए, अरेस्ट कर। फिर हम बी, सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, जहां पे आपको रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पिशन है आपका कि इसने 7 साल तक का कोई अपराध किया है, जैसे सेक्शन 354 का अपराध या फिर चोरी चकारी का अपराध, 7 साल से नीचे है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, मगर कंडीशंस लगा दी गई। अगर 7 साल से नीचे है तो उस पर कंडीशन, क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू हैव द रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव होना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि जो आपको इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट या सस्पिशन है वो किसी ना किसी वजह से सच है। ये होता है रीजन टू बिलीव। यहाँ कहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है? इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 26 में, सीआरपीसी नहीं, आईपीसी। सेक्शन 26 में रीजन टू बिलीव की आप डेफिनेशन देखोगे तो पता चलेगा। उसे पहली चीज है कि आपको सच लगना चाहिए, ऑन द प्राइम ऑफ फेसाई आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, कुछ इसमें दम है। फिर आप नेसेसिटी प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। ये नेसेसिटी प्रिंसिपल कहाँ से आया? सर सिरिल फिलिप कमिटी, द रॉयल कमिटी ऑफ 1981, जहां से बहुत सारे पॉइंटर्स हमने निकाले हैं, वहां से आया है ये पार्ट, द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जहां पे अरेस्ट किया जा सकता है। तो आपको, जब आपके पास रीजन टू बिलीव होगा, उसके बाद ये देखना है कि यू आर सेटिस्फाइड कि उसको अरेस्ट करना नेसेसरी है। पहली चीज रीजन टू बिलीव, सेकंड चीज अनिवार्य है उसको अरेस्ट करना। क्यों? क्योंकि वो एक फर्दर ऑफेंस कमिट कर सकता है, वो और ऑफेंस कमिट कर सकता है आगे, कि अगर उसने अभी एक चोरी करी और हम नहीं पकड़ेंगे, 7 साल से नीचे का अपराध है, मगर अगर हमने नहीं पकड़ा तो वो और चोरी करेगा, या फिर डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस कर देगा 201 में आईपीसी, या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस की नहीं हो पाएगी अगर हमने इसे पकड़ा नहीं। अगर हमने नहीं पकड़ा, फिर से फैब्रिकेशन कर देगा या डिसअपियरेंस कर देगा, है ना। फैब्रिकेशन का ऑफेंस आपको दिख जाएगा 191 से शुरू हो जाता है, 201 में डिसअपियरेंस शुरू हो जाती है। या फिर डिसअपियरेंस एंड टैंपरिंग से इसको रोका जाए, बता चुका हूँ। या फिर वो किसी को इंड्यूस कर सकता है, माने किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, थ्रेट कर सकता है, धमकी दे सकता है कि मेरे खिलाफ कोई विटनेस में दियो, वो ऐसा कुछ किसी को डरा सकता है। या फिर प्रॉमिस कर सकता है कि यू, इफ यू आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट, तो बी डिस्करेज्ड, डू नॉट कम अगेंस्ट मी, एंड आप पुलिस के पास मत जाना। आप तो नहीं बोलेगा, तू बोलेगा, पुलिस के पास मत जाना, वो धमकी दे सकता है। अगर वो ऐसी चीजें कर सकता है और उसकी प्रेजेंस को सिक्योर नहीं किया जा सकता आगे जाके, ऐसा पुलिस वालों को लगता है कि वो यहाँ का है नहीं, मुंबई का है या बाहर का है, अगर वो एक बार चला गया, हमारे कब्जे में नहीं रहा, तो उसके बाद नहीं मिलने वाला। अगर इनमें से कोई भी चीज है तो आप 7 साल के नीचे के ऑफेंस में भी अरेस्ट कर पाएंगे। सिटी प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। तो 7 साल से नीचे अगर आपको अरेस्ट करना है विदाउट वारंट या ऑर्डर, विदाउट वारंट और ऑर्डर होगा तो कर लो, जैसे मर्जी करो, जो मर्जी करना है करो। मगर अगर नहीं है तो 7 साल से नीचे के ऑफेंस में
रीजन टू बिलीव दिखाना होगा और नेसेसिटी प्रिंसिपल को पूरा फॉलो करना होगा, रीजन दिखाने पड़ेंगे। इंड्यूसमेंट, थॉट, थ्रेट और प्रॉमिस के ऊपर कौन कौन सी सेक्शन है हमारे पास? 163 मिलेगा आपको इसके ऊपर, 24 इंडियन एविडेंस एक्ट का मिलेगा और 28 इंडियन एविडेंस एक्ट का मिलेगा, 29 भी रिलेटेड है। सो इन सारी चीजों को आप फॉलो करें। और उसके साथ साथ नीचे लिख दिया गया है, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, एंड द पुलिस शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग, कि आपने क्यों अरेस्ट किया। ये शैल जो वर्ड है ये बाद में आया है, पहले ये मे था। एंड पर्सन जिनका आपने अरेस्ट नहीं किया या उनकी जरूरत आपको नहीं लगती कि इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका भी आप जवाबदारी लिखेंगे, वहां पे रिकॉर्ड करेंगे कि हमें इसलिए नहीं लगता कि इसको अरेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। These are the provisions which have been introduced to justify the words of the honorable court in the case of DK Basu. Now comes the second category. हमने दो कैटेगरीज देखी, प्रेजेंस में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किया अरेस्ट कर, कैसा भी ऑफेंस हो। अगर बाकी केसेस में 7 साल से नीचे का ऑफेंस है तो रीजन टू बिलीव दिखाओ और नेसेसिटी प्रिंसिपल को पूरा। और उसके बाद अगली कैटेगरी आती है कि अगर 7 साल से ऊपर का अरेस्ट है तो आप कभी भी अरेस्ट कर सकते हो। ये सेकंड कैटेगरी, और इस कैटेगरी के अंदर ही ये सारे आते हैं। बीए के बाद जो CDEFGHI तक जाएगा, वो सारों में आप किसी को भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर। अब यहीं पे हम अब आगे जाके पढ़ेंगे, मगर जान लेना जरूरी है कि जब ये 41(1) का जो सेकंड कैटेगरी थी 7 साल से नीचे वाली, अगर वहां पे आपको किसी को अरेस्ट करना भी है, रीजनेबल रीजन टू बिलीव दिखा दिया, नेसेसिटी प्रिंसिपल पूरा कर दिया, तो उसके बाद काम खत्म नहीं हुआ। आपको 41A, 41B, 41C, 41D को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद उसको आप अरेस्ट कर पाओ। सो लेट्स सी अभी कि ये सारी चीजें क्या है, कहाँ कहाँ पे आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट एंड ऑर्डर। पहली चीज 7 साल से ऊपर का ऑफेंस। दूसरी चीज ही इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेमेशन कहाँ पे होती है? 82 एंड 83 ऑफ CRPC। इज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उसको प्रोक्लेम किया गया है। अगर प्रोक्लेमेशन को कोई प्रिवेंट करता है या फिर प्रोक्लेमेशन जहां चिपकाई गई है उसको फाड़ देता है, ऐसा कोई काम कर रहा है और प्रोक्लेमेशन हो जाने के बाद भी कोर्ट नहीं आ रहा है, तो 3 साल की सजा मिल सकती है, 173 IPC, 174A IPC। So I am putting up everything that is there to learn about one provision, one sentence or one paragraph that is there to learn, so that कभी भी हम ये अब पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर जितने वर्ड्स हैं हमें हर चीज का मतलब पता है। डी में, if the person is found in possession of anything which may reasonably be suspected to be a stolen property। अगर आपके हाथ में कोई भी ऐसी चीज पाई जाती है जो स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है, सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, फटे कपड़ों में आप रोड पे घूम रहे हो, मगर आपने 2-3 गोल्ड की चेन्स पहन, रीजनेबली ये सस्पिशन जा सकता है कि ये कहीं से चोरी करके लाया है, भले ही ना करके लाया, मगर जा सकता है। आगे जाके प्रूव होगा, क्या एविडेंस होगा, क्या नहीं होगा, कैसे प्रूव करोगे, क्या दिखाओगे, क्या प्रिजम्पशन होगी कोर्ट की, ये सारी चीजें बाद की बात है। फॉर एग्जाम्पल 110 और 114 की प्रिजम्पशन है, वो आपको बचा भी सकती है और आपको फंसा भी सकती है। 110 की जो प्रिजम्पशन है वो कहती है प्रिजम्पशन एज टू ओनरशिप, 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 110 की जो प्रिजम्पशन है वो कहती है कोर्ट विल प्रिज्यूम द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन जब तक कि दूसरा बंदा जो ये क्लेम कर रहा है कि इसकी ओनरशिप नहीं है वो प्रूव ना कर दे कि इसकी ओनरशिप नहीं है। आपके सर में नहीं, गले में अगर चेन है गोल्ड की, आपने पहन रखी है, तो वो तब तक आपकी जब तक अगला बंदा ये ना बता दें कि वो किसी और की है या आपकी नहीं है। ये प्रिजम्पशन एज टू ओनरशिप है। उसी तरीके से 114 है। 114 की फर्स्ट इलस्ट्रेशन देंगे। 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसी
वारदात हुई है जिसमें कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन जैसे नॉर्मली चीजें चलती हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी अभी चोरी हुई है मेरे घर पे और बाहर निकलते ही जैसे पुलिस वाले यहाँ पहुंचे, एक इंसान यहाँ से अभी अभी हाथ में एलसीडी लेके जा रहा है, पता नहीं यहाँ से क्यों जा रहा है मगर जा रहा है पुलिस वालों के सामने, तो उसके हाथ में आपको एलसीडी दिखाई दे रहा है, तो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से पता चलेगा ना यार रात को एलसीडी लेके जा कहाँ रहा है ये, मतलब इसी ने चोरी करी। अभी अभी कंप्लेंट भी आई यहीं से कि भाई यहाँ देहरादून में चोरी हुई है, तो वहां पे ये प्रिजम्पशन होगी कि इसी ने चोरी करी है। इसी तरीके इसका ये इलस्ट्रेशन ए है, 114 का इलस्ट्रेशन ए है। उसी तरीके से आप इलस्ट्रेशन देख सकते हैं सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, इलस्ट्रेशन ए, वो आपको दिखाएगा स्टोलन गुड्स के बारे में एक और इलस्ट्रेशन, जहां पे अगर आपने आपके पास आप कहीं पे आपके पास पुलिस पहुंच जाती है कि इसने चोरी करी है, कहीं से पुलिस को लीड मिली कि हाँ इसने चोरी करी है, किस चीज की चोरी करी है जी, इसने नल का चुराया है पीतल का, ये एग्जाम्पल है। एक इंसान ने नल का चुराया था पीतल का, नहीं पता था कि उसने चोरी करी है, एक दिन किसी ने बता दिया कि इसने शायद चोरी करी, पुलिस उसके घर पहुंच गई, उससे पूछा तूने चोरी करी है या नहीं करी है, उसने कहा नहीं करी है। बाद में देखा, छानबीन करी तो दिखा कि उसके घर में नलके ही नलके पड़े, इतना पीतल, इतना पीतल, पीतल ही पीतल, बेचता रहता है खाता रहता है धीरे धीरे। तो 14 क्या कहता है कि अगर किसी के पास स्टोलन आर्टिकल्स बहुत सारे मिले हैं, वहां पे बहुत सारे अलग अलग जगहों के नलके चोरी करके ला रखा है और जमा कर रखे हैं, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये वाला नलका जो चोरी हुआ है ये भी इसने चोरी ही किया है, ये खरीद के नहीं लाया कहीं। इसी तरीके से आप सेक्शन 21 भी चेक कर सकते हैं। सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इलस्ट्रेशन डी विल टेल यू कि अगर सेक्शन 21 क्या कहता है कि आपने अगर एडमिशन किया तो आप अपने फेवर में एडमिशन नहीं कर सकते, वो माना नहीं जाएगा, मगर कुछ कंडीशन है जब वो माना जा सकता है। सेक्शन 32 में अगर फॉल कर जाए, 32 में डाइंग डिक्लेरेशन में, इफ इट इज रेलिवेंट बिटवीन टू पीपल, इफ यू वर नॉट देयर, इफ यू वर देयर, वो रेलिवेंट होता अगर, तो मान लिया जाएगा। अगर वो आप अपने अगेंस्ट कर रहे हो तो मान लिया जाएगा। इफ इट इज एन एडमिशन अदर देन द वे ऑफ एडमिशन तो मान लिया जाएगा, या फिर इट एक्सप्लेन्स योर कंडक्ट। 21(2), इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21(2) में ये लिखा गया है कंडक्ट के बारे में, दैट इट रेंडर्स योर कंडक्ट रेंडर्स एन इवेंट इम्प्रोबेबल, उसकी इम्प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है आपका कंडक्ट। उसमें इलस्ट्रेशन क्या है कि अगर आपके पास, आपको पकड़ा गया और आपके पास चोरी का माल मिला है, तो आप कहते हो कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये सोने की चेन मुझसे किसी ने मांगी थी कि मुझे बेचो, और मैंने मना कर दिया था, क्या कह के, ये कह के कि मैं ये 70,000 की चेन है, मैं 70,000 से 1 रुपया भी नीचे नहीं बेच। तो आपका कंडक्ट ये बता रहा है कि ये आपकी खरीदी हुई चेन, तभी तो आप उसको कम में नहीं बेच रहे ना। अगर कोई चोरी की चीज है तो वो तो कम में भी बेच सकते हो, कागज वागज भी नहीं है, उसका अता पता भी नहीं है, रिस्क भी है, जल्दी उसको निकालना भी है, डाइल्यूट उसको लिक्विडेट भी करना है, तो आप उसको बेच देते हो। मगर अगर आप उसे मना कर रहे हो, ये प्रूव कर देते हो अपने कंडक्ट से, तो दैट विल बी एडमिसिबल, एंड उससे आप प्रूव कर, तो स्टोलन प्रॉपर्टी के ऊपर ही कुछ कुछ प्रोविजन थे, और भी बहुत प्रोविजन थे जिनको आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आपके सामने आते रहेंगे। इस तरीके से स्टोलन प्रॉपर्टी अगर कहीं पे मिली है उसके खुर्द बुर्द होने की बहुत चांसेस होती हैं, तो उसको भी, जिसके पास वो मिली है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नाउ, वन हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर while in the execution of his duty, अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को रोक देते हैं, आपने जाके उसको, आप अगर कोई अरेस्ट करने जा रहा है, आप उसको अरेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, पकड़ रखा है, उसको भागने दे रहे हैं किसी और को, एड कर रहे हैं उसके एस्केप में, 186 में आप आ जाओ। और अगर आप एस्केप कर रहे हैं किसी की कस्टडी, तो आप 225 बी में आ जाएंगे आईपीसी। और अगर आप पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और आपने हर्ट कर दिया पुलिस ऑफिसर, तो आप आ जाएंगे 332 और 333 में। अगर आपने हर्ट किया है 332,
ग्रीवियस हर्ट किया है 333, और ग्रीवियस हर्ट 333 में जो है ये कॉग्निजेबल भी है और नॉन बेलेबल भी। पुलिस वाला अगर आपको हर्ट करे कन्फेशन के लिए या कुछ ऐसा करे, हर्ट करें आपको, तब वो कॉग्निजेबल तो है मगर बेलेबल भी है। मगर अगर आप पुलिस वाले को मारें, ग्रीवियस हर्ट करें, उसको डेटर करने के लिए, उसकी डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटीज से, देन इट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, देन ऑल्सो विदाउट अ वारंट, ऑब्वियसली यू आर एस्केपिंग ए कस्टडी, तो पहले वो मैजिस्ट्रेट के घर जाए, उससे वारंट लेके आए, फिर आपको पकड़ने जाए, दैट डज नॉट मेक सेंस। दैट इज व्हाई very sensibly this provision has been put here. Who is a reasonable who is reasonably suspected of being a deserter from any armed forces of the union? कोई भी आर्म फोर्स हो सकती है, एयरफोर्स हो सकती है, नेवी हो सकती है, या फिर आर्मी हो सकती है, जहां से इफ अ सोल्जर हैज डेजर्टेड द आर्मी एंड ही इज सस्पेक्टेड ऑफ इट, तो आप उसको भी बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी, एंड दे कंडक्ट देयर बिजनेस वेरी इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड फॉर्म। और आपको डेजर्टर होने की वजह से सीधा सजाए मौत भी मिल सकती है, कोड में जो मार्शल लॉज हैं उसमें मिल सकती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 38 39 के आसपास आपको ये प्रोविजन मिलेगा आर्मी एक्ट में, जिसमें आपको सजाए मौत हो सकती है डेजर्शन के लिए। और अगर आप बिना लीव लिए एब्सेंट हो जाते हैं कहीं से, तो आपको 3 साल की सजा मिल सकती है। तो वेरी टफ लॉ। देन कम्स इफ यू आर सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया में भी क्राइम, सपोज आप यहाँ से मर्डर करके बाहर चले गए, तो आप यहाँ पर जब वापस आएंगे तब आपको यहाँ पे पकड़ के आईपीसी के अंडर, सीआरपीसी के हिसाब से आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अगर आप वहां पे कोई ऐसा क्राइम करके आए हैं जो यहाँ पे भी एक क्राइम है, तो भी आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। आप यहाँ पे एक शादी करते हैं, दुबई जाके दूसरी शादी कर लेते हैं क्योंकि वहां पे अलाउड है, वापस आएंगे पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइगमी नहीं अलाउड। सो अगर आपका एक्स्ट्राडिशन लॉ में ऐसा लिखा, एक्स्ट्राडिशन एक्ट है हमारी आई थिंक 1961 की, एंड उसमें प्रोविजंस हैं, एज फार एज आई रिमेम्बर, सेक्शन 5 6 7 9 13 25, ये सारे सेक्शन बताते हैं कि कब अरेस्ट किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट से कब ऑर्डर लिए जाएंगे एक्स्ट्राडिशन के केस में, ये सारी चीजें बताई। एच, हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट, आप कन्विक्ट हो चुके थे एक ऑफेंस के लिए, आपको रिलीज किया गया है, बेल पे, पैरोल पे आपको रिलीज किया गया है, एंड यू देन कमिट ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड बाय द गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 356। 356 में क्या होता है कि अगर आप रिलीज कन्विक्ट हैं, तो आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है कि आपको 20 दिन में, 25 दिन में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में आके पुलिस वालों के पास आके साइन करके जाना पड़ेगा दैट आई एम लिविंग हियर, आई हैव नॉट लिव्ड द कंट्री एंड एवरीथिंग। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, यू ब्रीच द रूल्स, आप अपना एड्रेस बदल लेते हैं, कहीं चले जाते हैं और फिर आप पकड़े गए, तो आपको बिना वारंट के, बिना किसी ऑर्डर के अरेस्ट किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज अ रिस्क। आप पहले ही ऑफेंस कर चुके हैं और आप फिर से कुछ कर देंगे, तो आपके ज्यादा चांसेस है ना आपके उसको कमिट करने की। जरूरी नहीं है, मगर प्रीवियस कन्विक्शन इज एडमिसिबल, इट इज रेलिवेंट। कहाँ पे रेलिवेंट है? सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन 2 में देखिए, प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो भी रेलिवेंट हो जाता है। नाउ I point I is for whose arrest any requisition, whether written or oral, has been received from another police officer। requisition कुछ नहीं, एक रिक्वेस्ट होती है बाहर की jurisdiction से। एक पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि आपकी jurisdiction में कोई ऐसा इंसान आ गया है मेरी jurisdiction से या कहीं से भी, जिसको अरेस्ट करना है मुझे, एंड आई एम एम्पावर्ड टू अरेस्ट, तो आप उसको अरेस्ट कर लीजिए मेरे बिहाफ पे विदाउट वारंट एंड ऑर्डर, बिकॉज आई एम ऑल्सो एम्पावर्ड टू अरेस्ट हिम इन दैट वे। आप उसको अरेस्ट कर लो। और मुझे तो ये जो रिक्विजिशन होती है, जब ये विद इन इंडिया होती है तो इसे रिक्विजिशन कहा जाता है। जब ये अब्रॉड होती है, बाहर की जुरिस्डिक्शन में, किसी कंट्री में ऑफिसर्स को आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एक अपराधी है, उसको आप पकड़ के हमें दे दीजिए, उसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहते हैं। 165A 166A सीआरपीसी में आपको मिल जाएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में। तो ये रिटन और ओरल भी हो सकती है, रिसीव फ्रॉम अदर पुलिस ऑफिसर, प्रोवाइडेड दैट उसमें स्पेसिफाइड हो किसको अरेस्ट करना है, किस लिए अरेस्ट करना है, एंड ये दिखाई देना चाहिए कि जिस ऑफिसर ने आपको कहा है कि इसको अरेस्ट करो,
he should be competent under law to arrest that person without a warrant or order from magistrate. एंड आखिर में हमारे क्लॉज 2 में जहां पिछले जो पहले 41 था उसमें ये लिखा था 109 और 110 वालों को आप कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह स्पेसिफिकली मना किया गया है कि कोई भी इंसान अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है दैट इज आउट ऑफ योर रीच, यू विल नॉट अरेस्ट दैट पर्सन अनलेस एंड अनटिल वो आपको नाम पता बताने से मना कर सकता है. अगर he refuses to tell you the residence and his name or you believe that it is a false name or address तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, फिर आप कर सकते हैं. ये सेक्शन 42 में दिया गया है. इसी तरीके से आप जो अगर आप रोड पे हैं और आपको पकड़ लिया जाता है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, वो आपसे नाम पता पूछ रहे हैं या आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, आप नहीं दिखा रहे हैं, आप तैश में हैं, तो आपको पकड़ के वो अंदर कर सकते हैं. वहां पे भी यही सेक्शन अप्लाई होता है. आई थिंक सेक्शन 189 है या फिर सेक्शन 202 है, कोई एक सेक्शन है जो वहां पे अप्लाई होता है. तो नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट नहीं कर सकते, मगर कोई नाम पता नहीं बता रहा है तो अरेस्ट कर सकते हो. तो इसको पुलिस मिसयूज भी करती है कई बार कि इसने नाम पता नहीं बताया इसलिए हमने इसे 2 दिन लॉकअप में रखा, 1 दिन लॉकअप में रखा, कुछ घंटे लॉकअप में रखा, तो इसे मिसयूज भी किया जाता है. नाउ अब जो मैंने आपको बताया था वो कैटेगरी जहाँ पे 7A एंड 7 नहीं 7 साल से नीचे के जो ऑफेंसेस थे वहां पे नेसेसिटी को आपने कंप्लाई किया. उसके बाद आपको क्या क्या कंप्लाई करना है? 41A को सबसे पहले कंप्लाई करना है, जिसमें 41A में ये कहा गया है कि आपको एक नोटिस इशू करना पड़ेगा. किस केस में? व्हेन द अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 41. सबसेक्शन 1 ऑफ 41 यही था ना. 1 में तो सारी ही कैटेगरीज आती हैं ABCD, मगर 41(1) में किस जगह पे रिक्वायर्ड नहीं था अरेस्ट करना? उन केसेस में जहां पे 7 साल से नीचे की सजा है. अगर वहां पे नहीं था रिक्वायर्ड तो आप क्या करेंगे उस केस में? क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे? आप एक नोटिस दोगे एक्यूज्ड को कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पिशन है आपके खिलाफ कि आपने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, मगर क्योंकि 7 साल से नीचे हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कृपया हमारे सामने अपीयर होइए, जहाँ पे हम आपको बुलाते हैं. इस नोटिस में नाम लिखा हुआ है उस जगह का, उस जगह पे आप आइए और हमारे सामने अपीयर कीजिए. जहाँ पे वो आपने उसको नोटिस दिया, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो कंप्लाई करेगा उस नोटिस की टर्म्स के साथ. और जहां पर वो कंप्लाई करता है और कंटिन्यू करता है, करता रहता है कंप्लाई, जब जब बुलाते हो तब तब आता है हाथ जोड़ के आपके सामने, तो आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे उस ऑफेंस के लिए जो उस नोटिस में लिखा है. किसी और ऑफेंस के लिए कर सकते हो. इसका मतलब ये नहीं कि एक बार नोटिस मिल गया 41A का तो कभी भी अरेस्ट ही नहीं कर पाओगे. जो वहां पे ऑफेंस लिखा है उस ऑफेंस के लिए आपको वो अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक आप कंप्लाई करते हैं कंडीशन के साथ और अपीयर करते हैं उनके सामने रेगुलरली जब जब आपको बुलाया जाता है. एंड जहां पे आप फेल कर जाएंगे, जहां आप नहीं आएंगे या फिर आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा. राइट? तो आपको अरेस्ट कर लिया जा सकता है. देन 41B में डी के बासु ने डायरेक्टली ये सारा का सारा प्रोसीजर दिया. क्या और क्या करना होगा? ये सारी चीजें एक साथ करनी होंगी. 41A, 41B, 41C, 41D, नॉट 41(1)(a)(b)(c)(d). 41(a)(b)(c)(d) कैपिटल वाला, ये सारी चीजें फॉलो करनी. पहले आपने उसको नोटिस दिया, वो कंप्लाई कर रहा है, अच्छी बात. नहीं कर रहा है, अरेस्ट कर लो. अगर उसको कंप्लाई कर रहा है, बाकी चीजें और क्या करनी है आपको? यू हैव टू बियर एन एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन हियर व्हाइल यू मेक द अरेस्ट. जब आप अरेस्ट करने जाओगे उस टाइम पे ऊपर लिखा है वाइल मेकिंग अरेस्ट, ऐसा नहीं बाद में या पहले. वाइल मेकिंग अरेस्ट, उसके ऊपर वो विंटर्स वाली जैकेट नहीं पहननी, आपका यहाँ पे होना चाहिए बैग. एंड एक्यूरेटली विजिबली आइडेंटिफिकेशन आपकी दिखनी चाहिए वहां पे, सो दैट आइडेंटिफाई कर सकें कोई भी इंसान की ये पुलिस ऑफिसर है. एंड आई डोंट हैव टू अप्लाई फोर्स, नहीं तो मैं और फंस सकता हूँ. आप एक मेमोरेंडम बनाएंगे जिसको एटलीस्ट वन विटनेस विल कम एंड अटेस्ट. डू नॉट कंफ्यूज इट विद सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट में जहां पे एटलीस्ट वन विटनेस कम्स एंड अटेस्ट,
वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको लॉ में रजिस्टर कराना रिक्वायर्ड नहीं होता। उन केसेस में विल्स वगैरह जैसे होती हैं, उसमें आपको आके अटेस्ट करवाना पड़ता है एटलीस्ट वन विटनेस से। दैट इज इंडियन एविडेंस। डू नॉट कंफ्यूज इट विद दैट। एंड एक विटनेस को बुला के हु इज द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन और रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी। अब ये रिस्पेक्टेबल मेंबर आपने 64 में भी देखा था, 64 में नहीं 174 में देखा था सीआरपीसी के, जहां पे इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है तो वन रिस्पेक्टेबल मेंबर को बुलाया जाता है। एंड 64 में एडल्ट मेल मेंबर होता है जिसको नोटिस दे देते हो आप, अगर आपको वो इंसान नहीं मिलता जिसको आप अरेस्ट करने गए हो या जिसको नोटिस देना। तो इस मेमोरेंडम को एक बंदे से आप अटेस्ट करवाएंगे, या तो फैमिली मेंबर होगा या रिस्पेक्टेबल मेंबर होगा। जिसको अरेस्ट किया है उससे भी उसको काउंटर साइन कराओगे, और जिसको अरेस्ट किया है उसको आप इन्फॉर्म भी करोगे कि ही हैज अ राइट कि वो एक अपने रिलेटिव या फ्रेंड को नॉमिनेट कर सकें और उसको इन्फॉर्म कर सकें अबाउट हिज अरेस्ट। ये सेक्शन 50A में डाला गया है 2005 में। और उसके साथ साथ दूसरा कौन सा प्रोविजन डाला गया 2005 में? सेक्शन 46 क्लॉज 4, जिसमें क्या लिखा गया है कि सनसेट और सनराइज के बीच में आप किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक आप खुद महिला नहीं है और परमिशन नहीं ले आती कोर्ट से, तब तक आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। उसी तरीके से सनराइज और सनसेट के बीच में एक और चीज है आईपीसी में, वो क्या है वो आप मुझे कमेंट्स में बताना। द गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश पुलिस रूम, कंट्रोल रूम। डीके बासु में डायरेक्शन दी गई थी, 41C में डाल दिया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में एक कंट्रोल रूम होगा। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम क्या करेंगे? वहां पे नेम्स एंड एड्रेसेस लिखे होंगे सब लोगों के, जहाँ पे सब लोग जो जिनको आप अरेस्ट करके आए हो उनका नाम पता होगा और किसने उन्हें अरेस्ट किया उनका नाम पता होगा। और जो स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम्स होंगे वो सारा का सारा डेटाबेस मेंटेन करेंगे कि किस किस तरह के अरेस्ट कितने कितने कब कब और कैसे कैसे हो। और 41D में सिंपल आपका एक आपको राइट दिया गया है, जो आपका आर्टिकल 20 में भी है, 22 में है या फिर, एंड 302 एंड 303 में भी है, एंड 41D में भी है, दैट यू कैन मीट योर एडवोकेट ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। दिस इज वेयर 41 ends. You have completely understood what is 41, how did 41 come into being like it is, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, व्हाट ऑल कैन यू राइट, हाउ टू अंडरस्टैंड आईपीसी, डिफरेंट वर्ड, आईपीसी नहीं 41 डिफरेंट वर्ड्स इन सेक्शन 41, उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, क्या क्या चीजें कनेक्टेड सेक्शंस क्या क्या हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के भी आईपीसी के, यू हैव कम टू नो नाउ। आप पुलिस के खिलाफ पीनल रेमेडीज क्या है आपकी अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो जाता है? 166 ऑफ 166A ऑफ आईपीसी में, इफ द पुलिस ऑफिसर हैज disobeyed the directions of law, क्या क्या डायरेक्शंस हैं लॉ की? कुछ कुछ डायरेक्शंस हैं लॉ की जो उन्होंने डिसोबे करी हैं, जैसे कि किस तरीके से एफआईआर लिखी जानी चाहिए, किस तरीके से इंटेरोगेशन करी जानी चाहिए, किस तरीके से बयान लिए जाने चाहिए, वो लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं, उन सारी चीजों में अगर कोई भी आनाकानी होती है तो 166A में पुलिस के खिलाफ पीनल एक्शन लिया जा सकता है। 167 आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट अगर इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम कर देता है आपके खिलाफ और वो प्रूव हो जाता है 167 में। 330 331 में आपको बता चुका हूँ, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट अगर आपके खिलाफ करी गई है कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए तो आपके खिलाफ ये ऑफेंस बनता है, 7 साल तक की सजा इसमें है। और हर्ट में नहीं है, ग्रीवियस हर्ट में है। एंड ये ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल भी है मगर बेलेबल है। अगर आप उनके अगेंस्ट कर देंगे मार पिटाई एंड ग्रीवियस हर्ट तो वो नॉन बेलेबल हो जाएगा एंड कॉग्निजेबल भी होगा और पिटोगे अलग। 342 आईपीसी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में अगर आपको रखा गया है, और 348 आईपीसी अगर आपको कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए और आपकी रेस्टोरेशन करने के लिए प्रॉपर्टी की अगर आपको कन्फाइनमेंट में रखा गया है, तो ये सारे ऑफेंसेस में भी आपको पीनल रेमेडी मिल जाएगी पुलिस के खिलाफ। अब कुछ प्रेसिडेंशियल रेमेडीज हैं जो मैं पहले ही आपको बातों बातों में बता चुका हूँ। फटाफट से हम ये सारे के सारे जजमेंट्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी ऑनरेबल कोर्ट्स ने रेमेडीज दी हैं और किस किस तरीके से और क्या क्या बोल के दी। तो फर्स्ट केस है सरविंदर सिंह ग्रोवर केस 1992, जिसमें कस्टोडियल डेथ हुई एंड यूनियन ऑफ इंडिया को 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन देने को कहा गया टू द विडो ऑफ द डिसीज।
ये 1992 है और 2 लाख की कॉम्पेंसेशन दी जा रही है, जो बहुत बड़ी बात है 1992 के हिसाब से, विच शोज कि मॉनेटरी रिलीफ दिया जा सकता है, एंड अच्छा खासा मॉनेटरी रिलीफ दिया जा सकता है थ्रू द कोर्ट इफ यू कैन गो टू द कोर्ट अंडर 32 और 226 एंड क्लेम योर राइट विच इज योर्स राइटफुली। एंड इसमें ये भी कहा गया कि 2 लाख रुपए जो हैं दे शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। आगे जाके जब इनको सिविल रेमेडी चाहिए होगी या फिर किसी भी और तरह की रेमेडी चाहिए होगी जहाँ पे ये पैसे मांगते हैं, वहां पे 2 लाख को कंसिडर नहीं किया जाएगा। यू विल नॉट टेक इट इनटू अकाउंट एंड यू विल नॉट से कि 2 लाख मिल चुके हैं अब हम इनको सिर्फ 20, 30 हजार 50 हजार देंगे। इसको स्पेसिफाई किया गया। देन केम नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1993, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स व्हाट दे डिड वाज they kept a person in police custody and according to their account of business they said that 10 बजे हम लाए थे 2 बजे हमने इसको छोड़ दिया, हम सुबह लाए थे शाम को इसको छोड़ दिया और उसके बाद जाके इसने पता नहीं क्या किया, ये इसकी डेथ हो गई। नाउ उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, लोअर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि देयर इज नो डेफिनेट प्रूफ कि पुलिस ने ही द पर्सन इन कस्टडी जो था उनको मारा है। एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी डोंट हैव टू बी दैट मैकेनिकल। अगर कस्टडी में उसकी डेथ हुई है तो इंजरी उसको पुलिस वालों की वजह से ही हुई है, नो वन एल्स हैज कॉज्ड दैट इंजरी एंड दैट इज वेरी अपेरेंटली यू कैन सी दैट इट्स अपेरेंट। एंड अंडर दैट इन सारे पुलिस वालों को जिनको एक्विट कर दिया गया था, इनकी कन्विक्शन को उल्टा दिया गया, इनकी एक्विटल को उल्टा दिया गया और कन्विक्शन बनाया गया और इन सब से 20 से 50 हजार की सजा, 20 से 50 हजार रुपए लेके विक्टिम को दिए गए। एंड स्पेशली ये भी कहा गया कि जो विक्टिम को पैसा जाएगा वो विक्टिम को ही जाएगा, किसी और गलत इंसान के हाथ में नहीं, विच इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन केम रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, फेवरेट जजमेंट। इसमें आप ऑनरेबल जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की जजमेंट है। इसमें आप उनको सुन सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स के एंड स्टेट के खिलाफ व्यंग किया है, जो एक सार्केज्म किया है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली डन और मजा आता है इसको रीड करने में। 1983 का केस है। 1983 में द पर्सन आफ्टर द एक्विटल वाज केप्ट फॉर 14 इयर्स, एक्विटल हो गया, 14 साल तक उसको जेल में ही रखा गया। क्या कह के कि मैजिस्ट्रेट ने ये लिख दिया था कि टिल फर्दर ऑर्डर्स इनको कस्टडी में रखा जाए। तो टिल फर्दर ऑर्डर्स 14 साल हो गए और आपने ऑर्डर्स पे ध्यान नहीं दिया और ये जो इंसान अंदर था ही वाज इनसेन। तो 14 साल तक के अंदर। उसके बाद व्हेन ही केम आउट, सुप्रीम कोर्ट देन एंड देयर विदाउट लुकिंग एट किसकी गिल्ट थी क्या नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट अवॉर्डेड अ कॉम्पेंसेशन फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड कॉम्पेंसेशन इनको 5,000 दिलाई अलग से, 30,000 अलग से एंड लीगल एक्सपेंसेस अलग, और बाद में भी ये ऑब्वियसली ले सकते हैं कॉम्पेंसेशन। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लेक्चर। Person, this was a member of legislative assembly who was going from one place to another, from Jammu to Srinagar, and he was intercepted by the police. God knows where police came to know about that he is going to come from this place to this place, and they intercepted him. They arrested him. They did not let him join the budget session that was going to be there on the next day, and he could not join it on someone's orders. And there were material irregularities in the documentations that the police had made, जो सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई करी एंड 750,000 की इनको कॉम्पेंसेशन दिलाई गई देन एंड देयर, विदाउट सीइंग कि क्या गिल्ट है क्या नहीं है, उसी टाइम पे इनको कॉम्पेंसेशन दिलाई गई एंड दिस वाज बेस्ड ऑन रुदल शाह। देन केम द जजमेंट ऑफ सेबेस्टियन एम होंगरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984, where habeas corpus, it is not habeas corpus, habeas corpus may be issued ex parte in exceptional circumstances। ये जजमेंट दी गई कि हेबियस को अगर कोई कन्फाइंड है and the other party has not been heard, so you will not wait for that party to be heard and the other party cannot take that objection कि हमें तो सुना ही नहीं गया, तो हम आप हेबियस कॉर्पस कैसे पास कर रहे हो। हेबियस कॉर्पस कैन बी पास एक्स पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। देन केम सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। सहेली किसी लड़की का नाम नहीं है, सहेली एक एनजीओ का नाम है।
सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिन्होंने इसमें पिटीशन डाली थी. एंड in 1990 what happened was there was a landlord, there was a person who owned a house जहाँ पे 5 लोग रहते थे as tenants, and that person sold that house to someone else. Now these people wanted these tenants to go and they wanted to do something with the house or give it to someone else or make it a commercial building or something. In Delhi, these people asked the 5 tenants to go away, but out of those 2 remained because they did not have the means to go and shift at that moment. So they requested कि हम अभी नहीं जाएंगे. These people, because they were related to the police there in the thana there, or they were influential enough, they asked them to help them, and पुलिस ने अपनी तरीके से हेल्प करी, इनको धमकाया, मगर इन्होंने अपने एडवोकेट से बात करी and they did not go. Now this woman, one of them, went to the lawyer one day, and police came, and उन्होंने इनके बच्चों को उठा के बाहर फेंक दिया. 3 बच्चे थे इनके, उनको बाहर फेंक दिया. When she came back, she came to know that this has happened, and she then saw that there were policemen. And वहां पे देखते ही जब इन्होंने वापस अंदर जाने की कोशिश करी, पुलिस वालों ने इनको मारना शुरू किया. एंड बच्चा अपनी माँ को बचाने आया तो पुलिस वालों ने उसके भी डंडा मारा और उसकी टांग तोड़ी. एंड जो मदर थी उसको अरेस्ट कर लिया, बिकॉज ऑफ विच दैट किड कुड नॉट गेट द मेडिकल अटेंशन दैट ही नीडेड, बिकॉज ऑफ विच उसको बुखार चढ़ जाता है, न्यूमेनाइटिस हो जाता है, एंड उसको राम मनोहर लोहिया ले जाया जाता है. उनकी जब मदर की बेल होती है, वो आती हैं अगले दिन और उसको फिर लेके जाती हैं राम मनोहर लोहिया, वहां पे फीवर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है. इस केस में 75,000 का उनको कॉम्पेंसेशन दिया गया. दिस वॉज बेस्ड ऑन जोगिंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1969, which was the first case जहाँ पे ये कहा गया था that state is responsible for tortious act of the employee, that is the officers, police, and common law immunity is not applicable in India. जो मैंने आपको बताया, sovereign immunity is not applicable here. It might be applicable there on the king and queen, but here it is not. Next case and the last case, Sangana Gowda versus Viran Gowda versus state of Karnataka, which is a very landmark judgment, and इसके अंदर and is the latest one out of the ones that have been quoted here, and इसमें सारी की सारी जजमेंट जो अभी तक की जजमेंट हैं, इन सब को बेस बना के एक प्रॉपर वन जजमेंट हैज बीन कंपाइल्ड एंड वन ऑर्डर हैज बीन कंपाइल्ड, जिसमें one latest status and position of the law regarding everything that we have talked about till now has been talked about. तो 2005 की इस जजमेंट में पुलिस को लायबल ठहराया गया 348 में, जिसमें आप एक्सटॉर्शन करते हैं, जिसमें आप किसी को जिसमें आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख के एक्सटॉर्शन करते हैं, कन्फेस करवाते हैं किसी से कुछ ना कुछ. 330 में, जिसमें आप हर्ट करते हैं किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में. 201 में, जिसमें आप डिसअपियरेंस करने की कोशिश करते हैं एविडेंस. ट्रायल कोर्ट ने 6 पुलिसमैन जो थे उनको अक्विट किया, मगर हाई कोर्ट ने 5 को कन्विक्ट किया, 6 महीने और 3 महीने की सजा दी कॉन्करेंटली रन करने के लिए. अच्छा, जो सजा होती है वो हमेशा कॉन्करेंटली जो है रन नहीं करती. अगर आपको 2 साल और 3 साल 2 सजाएं दी गई हैं 2 अपराधों के लिए, तो वो 2 साल पहले खत्म होंगे, फिर 3 साल शुरू होंगे, अनलेस एंड अंटिल यू टेल द कोर्ट स्पेसिफिकली कि इसको कॉन्करेंटली रन करवाओ. कौन से सेक्शन में लिखा है कि ऐसा हो सकता है? 31 में ऑफ सीआरपीसी, रेड विद सेक्शन 427. 427 का 1 एंड 427 का 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां पे आप कॉन्करेंट करवा सकते हैं अपनी इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस को. यहाँ पे कॉन्करेंटली रन करने को कहा गया, और फिर उसके बाद बेल भी दी गई इनको. सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी चीजों का जब सब कुछ पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, बेल कैंसिल कीजिए, इनकी जो जिसको भी आपने एक्विट किया था उसको कन्विक्ट कीजिए, एंड दे विल सर्व द सेंटेंस अंडर सेक्शन 348. रिनी जौहर वर्सेस एमपी में आपको बता चुका हूँ, 5 लाख की पेटिशनर्स को कॉम्पेंसेशन दी गई थी ईच ऑफ द पेटिशनर्स, एंड द स्टेट सेड पुलिस ऑफिसर से आप वसूल कर सकते हो पैसे जो भी आपको करने. Petitioners being ladies, they were taken illegally arrested from one place, they were taken to another in a Viklang dabba in a train on a cold floor, and they were not given anything to eat or drink, and everything like that happened. They were ill treated, and they were given the petition that the compensation that they deserve. And Boya Nathalabula, Venkateshwarlu
and others versus Circle Inspector of the Police, 1,000 rupees per day and 9,000 rupees for legal offences, legal expenses. This was awarded, and mandamus when inquiry is not needed and facts are clear as to wrongful confinement on the face of it, पास करी जा सकती है. कोर्ट सेड कि जब इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई दे रहा है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट थी, तो उसी टाइम हम दे सकते हैं. वी डोंट हैव टू गेट इनटू इंक्वायरी एंड वी हैव टू वेट फॉर द डिसीजन टू कम एंड सी दैट ट्रायल कोर्ट्स का क्या डिसीजन होता है, क्या फाइंडिंग होती है. वी डोंट हैव टू स्टॉप फॉर दैट. वी डोंट हैव टू lay back for that and wait for the decision to come and उसके बाद हम इनको कॉम्पनसेट देते हैं. अगर आपकी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दिखाई दे रही है तो आपको उसके लिए रेमेडी हम उसी टाइम दे सकते हैं, और मॉनेटरी रेमेडी भी उसी के अंदर है. और इसके अंदर बाकी सारे डिसीजंस जो हमने देखे हैं वो इसके इस जजमेंट के अंदर भी सारे के सारे कवर हुए. That was all that I had to talk about today. It was a very long video. My neck is paining, my throat is also sore, and आपके कान भी थक गए होंगे. So let's say that let's call it a day now, and do tell me in comments what do you feel about this video. Do you think I should cover more videos like this? And comments me, if you tell me, it will be an encouraging thing for me, and I'll be able to work with more encouragement later. Thank you so much. This is Advocate Raghav Arora, the editor manager for Lawyers Club India.